السلام علیکم سر. Assalamualaikum sir. Oh, you're all here. Ji, we are all. Very much before time, that's good. So, who's sitting where? Assalamualaikum. خواتین تو بہت ساری بیٹھی ہوئی ہیں یہاں. جی. سر میں عبدالرزاق شیرانی RGM بہاولپور DG خان بہاولپور ریجنل آفس میں بیٹھا ہوا ہوں, اور جو ہماری ڈسٹرکٹ ٹیم ہے وہ رامپور میں بیٹھی ہوئی ہے, ان کے ساتھ کچھ LSO کے ممبرز بھی ہیں. اور خواتین کہاں بیٹھی ہیں؟ ذیشان نور میں دیکھ رہا ہوں. یہ سر راجن پور میں ہے, یہ ہمارا IT اسپیشلسٹ ہے. اچھا, راجن پور میں ہے. سر جواد. السلام علیکم. وقار. یہ اکیلے کون بیٹھے ہوئے ہیں NRSP کانفرنس روم میں؟ یہ طارق عثمانی ہے. اچھا, پھر راشد شروع کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سر یہ ہماری دوسری نشست ہے LSOs کی آپ کے ساتھ, جو ہم نے یہ شروع کیا سلسلہ. تو اس سلسلے میں اب ہمیں ڈیمانڈز آ رہی ہیں, مطلب لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ آپ یہ ٹائم دیتے ہیں. تو اب تو پہلا یہ ہوا تھا کہ باغپور ریجن سے ہمیں یہ ڈیمانڈ آئی تھی, تو پھر ہم نے ان سے کہا کہ جی ٹھیک ہے, تو ٹائم لیا آپ سے. تھینک یو ویری مچ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آنے کا. LSO کے جتنے ممبران ہیں یہ سر راجن پور میں ہیں بیٹھے ہوئے, ہماری جو خواتین ہیں یہ, اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو علیحدہ علیحدہ بٹھائیں تاکہ وہ کووڈ والا بھی مسئلہ نہ ہو. تو شیرانی صاحب کے اوور ٹو یو, آپ ذرا تھوڑا سا انٹروڈکشن کرا دیں پھر شروع کریں. I'm very grateful. ایک منٹ جی سر. میں تو I think this I would love to do for everyone. So thank you so much for it. انشاءاللہ. تھینک یو سر, تھینک یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید. اور آج کی یہ جو نشست ہے سر, یہ ہمارا سب سے بیکورڈ ضلع جو ہے پنجاب کا وہ راجن پور ہے, اور اس کی تحصیل ہے راجن پور پراپر. اس میں ہماری ایک یونین کونسل ہے سکھانی والا کے نام سے, اور اس میں LSO جو ہے اس کا نام ہے سنگت. اس LSO تحصیل اور ضلع راجن پور میں یہ قائم ہوئی ہے. آج اس کی پریزنٹیشن اور ڈائیلاگ جو ہے وہ LSO کی چیئرپرسن وہ کنڈکٹ کریں گی, اور اس کے ساتھ سپورٹ کرے گی ہماری DPO حسینہ بلوچ. ویسے ہمارے جو بہاولپور ریجن میں جو ڈسٹرکٹ ہیں وہ 7 آتے ہیں, اور 7 ڈسٹرکٹ میں تھاؤزنڈز آف دا نمبر آف کمیونٹی آرگنائزیشن ہیں, BOs ہیں اور LSOs ہیں. لیکن کیونکہ وقت بہت کم ہے تو ہم اس وقت صرف اور صرف ان چیدہ LSOs کے ساتھ آپ کا ڈائیلاگ کرائیں گے جب بھی ٹائم ملتا جائے گا, جنہوں نے کوئی بڑی زبردست قسم کی ایفرٹس کی ہوئی ہیں سوشل موبلائزیشن میں, اور فردر جو آپ کا پیغام ہے اس کو آگے زمین کے اوپر وہ ایگزیکٹلی امپلیمنٹ کر رہے ہیں. آج اس سلسلے میں یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے, اور پہلی یونین کونسل سکھانی والا کی LSO کی پریزنٹیشن ہم شروع کرتے ہیں. تو میں میڈم حسینہ سے کہتا ہوں راجن پور سے LSO کے صدر منیجر کو دعوت دیں, وہ اپنا مختصر سا تعارف کریں اور اس کے بعد LSO کی پریزنٹیشن شروع کریں. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سر میرا نام حسینہ بلوچ ہے. جیسے کہ سر شرانی صاحب نے آلریڈی ہی تعارف کروا دیا ہے, میرا بھی اور ہماری یونین کونسل کی LSO سکھانی والا کا بھی. اب میں سر LSO اور شعیب صاحب اور باقی اپنی جو ہیڈ آفس کی ٹیم ہے اس میں مزید جو ہے نا اب ٹائم جو ہے اپنی بات کر کے مزید تھوڑا سا ضائع نہیں کرنا چاہتی. میری خواہش ہے کہ اس وقت یہ ہماری جو خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ شعیب صاحب موجود ہیں, ہماری LSO کے ممبران کے ساتھ شعیب صاحب موجود ہیں, تو زیادہ سے زیادہ ٹائم ہماری LSO کا شعیب صاحب کے ساتھ گزرے تاکہ ان کے ڈائلاگ سے اور ان کے ساتھ اپنی جو ان کی خدمات ہیں اور شعیب صاحب کی جو خدمات ہیں ادارہ سازی کے لیے, تاکہ وہ جو ہے زیادہ سے زیادہ ان چیزوں سے مستفید ہو سکیں. تو میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اب باقاعدہ طور پہ دعوت دوں گی اپنی یونین کونسل سکھانی والا LSO سنگت کی پریزیڈنٹ مس فوزیہ صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور اپنی جو LSO ہے اس کی پریزنٹیشن اور اس کی میٹنگ کا جو ڈائلاگ ہے وہ شعیب صاحب کے ساتھ اور اپنی ہماری جو ہیڈ آفس کی باقی پوری جو ٹیم بیٹھی ہے اس کے ساتھ اس کو منعقد کریں. تو مس فوزیہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں اپنی میٹنگ کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنا چاہوں گی، اور تلاوت کلام پاک کے لیے میں اپنی ایگزیکٹو باڈی کی ممبر سمرین فاطمہ سے کہوں گی کہ وہ تلاوت کلام پاک کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جزاک اللہ. اللہ. تلاوت کلام پاک کے بعد میں سب سے پہلے تو خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں ہماری NRSP کے جو چیف ہیں شعیب سلطان صاحب کو، کہ ان کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنی اس میٹنگ میں. ہماری LSO جو ہے LSO سنگھا، جیسے کہ میڈم صاحبہ پہلے نام بتا چکی ہیں، ان میں ان کو خوش آمدید کہتی ہوں کہ ہماری NRSP کے جو کہ بانی ہیں، جنہوں نے یہ ادارہ سازی کے ذریعے ہم لوگوں کو اس پلیٹ فارم پہ آ کے اپنی خیالات کا اظہار کرنا اور اس پلیٹ فارم پہ آ کے مجھے بولنے کا موقع دیا ہے. اور اس کے بعد میں اپنا تعارف کراؤں گی. جیسے کہ تعارف میرا ہو چکا ہے، میرا نام فوزیہ نذیر ہے، LSO سنگت UC سکھانی والا تحصیل و ضلع راجن پور سے ہے. اس کے بعد میں اپنی ایگزیکٹو باڈی کے جو ممبران ہیں ان سے کہوں گی کہ وہ اپنا باری باری تعارف کرواتے جائیں. السلام علیکم، میرا نام رشیدہ بی بی ہے، میں یونین کونسل سکھانی والے سنگت کی نائب صدر ہوں. السلام علیکم، میرا نام امیلا شوکت ہے، میں LSO کی منیجر ہوں. السلام علیکم، میرا نام سمرین فاطمہ، میں LSO سنگت کی فنانس سیکریٹری ہوں. السلام علیکم، میرا نام اللہ چاہیے، جنہیں کونسل دی سیکٹری ہوں. السلام علیکم، میرا نام شمیلہ اشرف ہے، میں LSO سنگت میں نشرہ شات ہوں. اب میں اپنی یونین کونسل سکھانی والا کی جو بنیادی معلومات ہے وہ بتانا چاہوں گی کہ یونین کونسل کا نام جیسے کہ پہلے بتایا کہ سکھانی والا تحصیل و ضلع راجن پور ہے، اور ہماری UC سکھانی والا میں کل موضع 8 ہیں، کل گھرانے 6896 جیسے کہ سکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. کل آبادی جو ہے نا وہ 40246. بنیادی مرکز صحت ایک منٹ ٹھہرے، ابھی سکرین پہ نظر نہیں آ رہے، اس کو سکرین پہ لگاؤ نا ان کی پریزنٹیشن تاکہ نظر آئے. جی سر، سکرین پر ڈسپلے کر دو پریزنٹیشن. ہاں آپ بتائیں. جی سر. یونین کونسل کا نام سکھانی والا تحصیل و ضلع راجن پور، کل موضع 8 ہیں، کل گھرانے جو ہے نا وہ 6896، کل آبادی 40246. بنیادی مرکز صحت 1 ڈسپینسری، 1 تھانہ، 1 مویشی ہسپتال، 1 ہے ہائی اسکول 3، مڈل اسکول 3، پرائمری اسکول جو ہے نا وہ ہماری UC میں 17 ہیں. ذرائع معاش ہماری UC سکھانے والا میں زراعت ہے، مال مویشی ہے، کاروبار، فصلات میں کپاس اگائی جاتی ہے، گنا ہے، چاول ہے، گندم، سرسوں وغیرہ. ذرائع آبپاشی جو ہے نا یہاں پہ نہری اور ٹیوب ویل ہیں. اب میں اپنی LSO سنگت پروفائل شیئر کرنا چاہوں گی کہ LSO کا نام جو ہے نا جیسے کہ پہلے بتایا سنگت ہے. تاریخ تشکیل اس کی جو ہے نا وہ سوشل ویلفیئر کے ذریعے 31/5/2010 ہے. کل گھرانے یہاں پہ ہے نا 6896، منظم گھرانے 4452. LSO میں ہماری ویوز جو بنی ہوئی ہیں ان کی تعداد 23. LSO میں COs کی جو تعداد ہے وہ 371 ہے. LSO کے موجودہ بلا معاوضہ جو CRP کی تعداد ہے جو کہ کام کر رہے ہیں وہ 5 ہے. LSO کے موجودہ معاوضہ لینے والے CRP کی تعداد 10 ہے. LSO رجسٹریشن نمبر جو کہ سر سوشل ویلفیئر کے ذریعے رجسٹر ہوئی ہے وہ RP05 کے اس کا وہ رجسٹریشن نمبر ہے. ٹوٹل موضع جیسے کہ پہلے بتایا وہ 8، یونین کونسل سکھانی والا تحصیل و ضلع راجن پور.
LSO संगत की जो बुनियादी मालूमात हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो मेंबर हैं वो 7 हैं, जनरल बॉडी के मेंबर 23 और LSO की जो मेंबरशिप फीस है सर, जनरल बॉडी के जो मेंबर हैं सॉरी वो उसके मेंबरान 36 हैं। LSO की मेंबरशिप फीस जैसे कि सर इसके बारे में मैं आगे आपको तफसील से बताऊंगी कि CIF कर्जा जो है ना वो पायलट प्रोजेक्ट के तहत है। इसमें मेंबरशिप फीस जो बनती है वो 7,92,000 रुपए। LSO अकाउंट नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यूनियन काउंसिल में गुर्बत की जो दर्जा बंदी है स्कोर के हिसाब से, उसके बारे में आपको नजर आ रहा है कि 0 से 11 स्कोर वाले घराने की तादाद है 1959, 12 से 18 स्कोर वाले घराने जो है ना वो 1426 हैं, 19 से 23 स्कोर वाले घराने जो है 1246 हैं, कुल घराने जो बनते हैं वो 4631। LSO संगत के तहत मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जो तफसील में बताना चाहूँगी, इनमें कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि हमने खुद बराह रास्त किए हैं और कुछ प्रोजेक्ट इसमें वो हैं जो जिनके साथ हमने मामनत की है। इदारा साजी का प्रोजेक्ट जो है ना इसमें सबसे पहले COs बनाई जाती हैं। COs जो बनाई जाती हैं वो ख़वातीन पर मुश्तमिल होती हैं, क्योंकि हमारी LSO जो बनी हुई है ये सारी ख़वातीन पर मुश्तमिल है। हमारी COs बनने के बाद VOs बनती हैं और VOs के बाद हमारी LSO है, एक हमारा इदारा है, हमारी ख़वातीन का इदारा है जहाँ पे आकर वो अपनी मदद आपके तहत भी काम करती हैं और कुछ इदारों के साथ राब्ता साजी में भी वो अपनी मदद करती हैं। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड जो है ना वो CIF कर्जा है जो कि हम अपनी जहाँ पे COVO बनी होती हैं उन ख़वातीन को कर्जा अता करते हैं। कर्जे में वो 25 से 30 हज़ार रुपये हासिल कर सकती हैं। ये कर्जा का जो तरीक़ाकार है, उनको कर्जा दिया जाता है कि 5 बंदों का जो एक ग्रुप बनता है, उन ग्रुप में वो अपना कर्जा हासिल करने के लिए उनके पास SMS आता है, SMS के जरिए वो बैंक में जाती हैं, बैंक में वो अपने पैसे निकलवाती हैं। और इसके बाद सर मैं वाइस के बारे में बताना चाहूँगी। वाइस प्रोजेक्ट जो है ना NRSP का प्रोजेक्ट जिसके साथ हमारी LSO काम कर रही है। वाइस वाटर पे और इम्यूनाइजेशन पे, सैनिटेशन पे और एजुकेशन पे काम करते हैं। SPAP प्रोजेक्ट है, बिलासूद कर्जे का प्रोग्राम है, स्कूल में बच्चों के इंदराज का प्रोजेक्ट है। इन सारे प्रोजेक्ट के साथ हमारी LSO की मामनत है। टैक्स प्रोजेक्ट इसमें और समाजी मुहिम बराए हसूल म्यारी तालीम, मकामी जिम्मेदारियाँ, ये दरअसल दोनों प्रोजेक्ट जो है ना तालीम के ऊपर है। इसमें हम तालीम के ऊपर काम करते हैं कि जो बच्चे स्कूल की उम्र को जाते हैं, स्कूल नहीं जाते, उनके वालिदैन को कायल करते हैं, आगाही सेशन देते हैं कि आप लोग अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल कराएं। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि स्कूल जा रहे होते हैं, पहले जाते हैं और अब नहीं जा रहे किसी वजह से, उनको कायल करते हैं कि आप लोग अपने बच्चों की स्कूल में हाजिरी जो है वो यकीनी बनाएं। PSSP PF स्कूल प्रोजेक्ट जो है ना ये दरअसल NRSP का को गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल दिए गए थे, जो कि जिनके साथ हमने ये मदद की है कि हमारे इलाके में कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ के स्कूल का मसला था, वहाँ पे पढ़ाई के लिए बच्चों का स्कूल नहीं था, या टीचर का मसला था वहाँ पे, या वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे किसी वजह से कि हाँ वहाँ पे लेडी टीचर तो है नहीं, उस्ताद है, हम क्यों पढ़ाएं। उनको कायल करने में उनकी मदद की है। आप लोग अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल कराएं। यहाँ पे वहाँ के उनकी कम्युनिटी की जो टीचर हैं वो तैनात करवाएं कि आप लोग इस स्कूल में पढ़ाएं ताकि बच्चों की तालीम जो है ना वो जारी रह सके। यहाँ पे LSO संगत की तरफ से दिए गए कर्जा जात की जो है ना तफसील बजरिए CIF मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले जो है ना हमारी LSO को 35 लाख रुपए NRSP की तरफ से दिए गए थे। ये 35 लाख जो है ना NRSP को PPF ने दिए थे। ये 2013 को हमारी LSO को दिए थे। हमारी LSO ने 2013 से ही लोगों को मीटिंग्स वगैरह के जरिए उनको ये बताना शुरू कर दिया था कि आपको कर्जे दिए जाएंगे जिससे आप अपने घर की आमदनी में भी इजाफा करें और अपने कारोबार को शुरू कर सके। 2013 था 2018 तक जितने क्लाइंट्स को कर्जा दिया गया वो 1802 हैं, जो कि जिस मतलब शोबा जात पर ये कर्जे दिए, जैसे ज़राअत है, माल मवेशी है, कारोबार है, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी उनकी तादाद। ये 1802 क्लाइंट्स को 3,18,60,000 रुपए है। और LSO की तरफ से वहीं साल 2018 में एक मसला ये था कि क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारी LSO
सोशल वेलफेयर के जरिए रजिस्टर है, ना कि मालियाती तौर पर, क्योंकि एक मालियाती इदारा ही अपने वो कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ उनको कर्जा ट्रांसफ़र कर सकता है। हम तो मालियाती तौर पर रजिस्टर नहीं थे, सोशल वेलफेयर के तहत, इसलिए NRSP की के साथ मीटिंग में ये हल निकाला कि आप लोगों को हमारी LSO के जो अमाउंट है वो उनके NRSP के जो पूल अकाउंट है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए जाए। इससे हमारा जो वो मसला पेश आ रहा था कि हमारे लोगों को कर्जे नहीं मिल रहे थे, इससे ये मसला बखूबी हल हो जाएगा। क्योंकि जब ये कानून आया, सख्त कानून आया कि मालियाती तौर पर हम रजिस्टर नहीं थे, इसलिए पूल अकाउंट में जब ये रकम ट्रांसफ़र होगी, सर पूल अकाउंट से पहले भी हम लोग कर्जा देते थे और रिकवरी भी करते थे, पूल अकाउंट के बाद भी हम ही कर्जा देते हैं और रिकवरी भी करते हैं। पूल अकाउंट में जितनी रकम हमारी ट्रांसफ़र हुई हमारी LSO की वो 64 लाख है। 64 लाख जो है ना सर, इसमें 29 लाख जो उनमें जमा, क्योंकि यही पे एक आप सोच रहे होंगे कि पहले तो 35 लाख रुपए था, अब इसमें ये 64 लाख कैसे हो गया। 64 लाख सर, इसमें 29 लाख 7,800 रुपये जो है ना हमारी LSO की आमदन है, जो कि उनसे मतलब फीस वगैरह पहले जो है ना 15% पूल अकाउंट से पहले ली जाती थी लोगों से, अब पूल अकाउंट के बाद जो है ना वो उनकी मेंबरशिप फीस है जो 1,200 रुपये एक मेंबर देता है। हम कर्जा 30,000 का लेती है या 25,000 का लेती है, उसमें वो यकमश हम उनको देते हैं, उससे उनसे मुनाफा कोई नहीं लेती हमारी LSO। तो इसमें जो है ना 1,200 रुपये वो मेंबरशिप फीस पूल अकाउंट में जमा करवाती है। जो अब तक पूल अकाउंट के बाद जितने क्लाइंट्स हैं हमारे वो 660 क्लाइंट्स हैं, उनके अमाउंट जो है ना वो 1,65,00,000 है। कौन कौन से शोबा जात पर ये कर्जा दिया है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, जैसे कि ज़राअत है, माल मवेशी है, कारोबार है। सर इसमें CIF कर्जा की तफसील जो है ना बामुताबिक गुर्बत की दर्जा बंदी के पूल अकाउंट से पहले जो है ना, क्योंकि हमारा जो CIF कर्जा है ये उन औरतों को, उन खवातीन को दिया जाता है जिनका स्कोर 0 से लेकर 34 तक पहले होता था पूल अकाउंट से पहले। अब जो है ना उनको 0 से लेकर 23 तक उन खवातीन को कर्जा दिया जाता है, वो कर्जा ले सकती हैं। और ये गरीब खवातीन होती हैं जो कि ये कर्जा उठाकर अपने कारोबार में इजाफा करना चाहती हैं। जो कुल मुस्तफीद घराने इससे बनते हैं 0 से 11 वाले, 12 से 18 वाले, 19 से 23 वाले, 24 से 34 वाले, 2462 इनकी कुल मुस्तफीद घराने हैं। CIF में सर शामिल तंजीमात की जो तफसील है वो 206 तंजीमात हैं। कर्ज खा जो कर्जा उठा रहे हैं वो 2462 हैं। टोटल जो इनके अमाउंट है 4,83,60,000 रुपये हैं। जो अब इस टाइम हमने जितने क्लाइंट्स को हमारी LSO ने कर्जा दिया हुआ है वो 198 है, तकरीबन 45 लाख जो कि अब हमने रिकवरी करनी है। CIF कर्जा है जैसे कि सर ये इदारा साजी है, इदारा साजी COVOs बनने से ही खवातीन में खुद मुख्तियारी आई है। वो जिनको बैंक का पता नहीं था कि बैंक में भी जाकर औरत अपने पैसे निकलवा सकती है या बैंक में जाकर अपना खाता खुलवा सकती है, क्योंकि CIF कर्जे में हम 5 लोगों का जब ग्रुप बनाते हैं तो एक औरत अपनी छोटी बतौर एक चेक देती है और चेक देने के लिए औरत को अपनी बैंक में जाना होता है, खाता खुलवाना होता है। तो सर इस CIF कर्जे से ही जो औरत में है ना खवातीन बैंक तक उनकी रसाई हुई है, बैंक में गई हैं और जो है ना मालियाती तौर पर उसकी इसमें शमूलियत आई है कि वो ना खुद मुख्तियार हो गई है। वो एक मालिक है, जब वो कर्जा उठाती है तो कर्जा उठाने से अपने घर में भाई के साथ या अपने बेटे के साथ या अपने शौहर के साथ वो उनके हाथ बटाती है। खाद बीज वगैरह लेते हैं, कोई उनके खामद या उनका बेटा कोई दुकान वगैरह खोलना चाहता है या कोई और कारोबार खोलना चाहता है तो इससे उसका मालियाती तौर पर भी हिस्सा बन जाता है, वो उसमें उसकी हाथ बटा रही होती है और माशी तौर पर भी वो खुद इन्हिसार हो जाती है, खुद मुख्तार हो जाती है। उसमें एक जज्बा पैदा होता है कि हाँ पहले तो सिर्फ एक घर में रोटी वगैरह पकानी है या घर का सिर्फ काम करना है, अब तो माशाल्लाह इस इदारे के बनने से, ये इदारा साजी से औरत में खुद मुख्तारी आई है। वो बाहर निकल कर वो कह सकती है कि हाँ भी हमारा एक इदारा है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, हम अपना मसला हल कर सकते हैं या कर्जा उठा सकते हैं। वो बाहर जाकर अपने मसाइल हल करने के काबिल हो गई है औरत। और CIF माइक्रो क्रेडिट के लिए मतलब सर
जैसे कि हम लोग जो है ना कर्जा उनको देते हैं, CIF कर्जा 3 साल तक एक औरत कर्जा उठा सकती है। 3 साल के बाद ये नहीं है कि हम लोग उनको छोड़ देते हैं, बल्कि हमारा इदारा जो है ना LSO का इदारा बतौर नर्सरी का काम करता है, उनके लिए रहनुमाई करता है। उनके लिए ये नहीं है कि वो अगर कर्जा उठाना चाहती है हम नहीं दे सकते, किसी और इदारे से उनका राब्ता करवा देते हैं कि आप जो है ना वहां से कर्जा उठा सकती हैं, अगर कोई खुद अपनी मर्जी से कर्जा उठाना चाहती हैं तो। और CIF कर्जा जो है ना इसके जरिए ही हमारी LSO का इस्तेकाम होता है, क्योंकि CIF कर्जा चलाते हैं, इससे हमारी LSO मजबूत होती है और लोगों में राब्ता साजी पैदा होता है। इसके अलावा जो है ना जैसे CRP उनके मुआवजे अदा होते हैं, हमारी LSO के दफ्तर का जो किराया वगैरह है वो पे होता है। सर जैसे कि पहले मैंने बताया है कि जब CIF कर्जा 3 साल एक औरत उठा सकती है तो उसका जो है ना राब्ता हम लोग करवा देते हैं। एक 2014 से ना IFL कर्जा दिया जाता है, जो कि ये भी खवातीन को ही दिया जाता है और स्कोर पर मबनी होता है। जिन औरत का स्कोर होता है उसको ये कर्जा दिया जाता है। इसकी हद जो है ना वो 0 से लेकर 30 तक जिनका स्कोर होता है वो औरत ये कर्जा उठा सकती है। और ये जो है ना CIF का कर्जा होता है वो देते हम लोग यकमुश्त हैं, लेकिन उनसे लेते भी यकमुश्त हैं। लेकिन ये IFL का जो कर्जा है ये देते तो यकमुश्त हैं लेकिन लेते उनसे किस्तों में हैं। IFL की जो कर्ज खा है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं कि कितने क्लाइंट्स हैं जो ये कर्जा उठा रहे हैं। इनकी टोटल अमाउंट 5,02,75,000 रुपए है। IFL के मौजूदा कर्ज खा की जो अब मौजूदा तफसील है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है सर। और हुकूमत पंजाब का जो बिलासूद कर्जा E-एग्री का कर्जा है, E-एग्री कर्जे में CIF कर्जे में तो सिर्फ ये होता है कि सिर्फ औरतें ही कर्जा उठा सकती हैं, लेकिन E-एग्री कर्जे में मर्द भी कर्जा उठा सकते हैं और खवातीन भी कर्जा उठा सकती हैं। इसमें तरीकाकार ये होता है कि जिसका मतलब 4 कनाल से 40 कनाल तक जमीन होती है वो लोग ये कर्जा उठाते हैं। इसमें मुस्ताजर भी होते हैं, मालिक भी होते हैं, और ये कर्जा वो औरत या मर्द NRSP के दफ्तर जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेते हैं। फॉर्म लेकर अराजी सेंटर जाते हैं, वहाँ से वो अपना फॉर्म लेकर ये कर्जा ले सकते हैं। उसके बाद वो बैंक में जाते हैं, बैंक में अपनी खाता खुलवाते हैं। अपने नाम का खाता खुलवाने के बाद उनका बाकायदा ग्रुप की सूरत में कर्जा दिया जाता है उनको। इसमें आपको नजर आ रही होगी कर्जा जात की जो तस्वीर है जिसमें कर्जा बनाया जा रहा है, और यही कर्जा 25,000 का उठाकर उसने अपनी दुकान खोली है, कारोबार और आमदनी में इजाफा किया है। वाइस प्रोजेक्ट की बुनियादी मालूमात जो है ना, वाइस प्रोजेक्ट में सबसे पहले जो है ना LSO का चुनाव किया गया कि LSO कौन सी LSO है जहाँ पे जाकर वाइस प्रोजेक्ट को पर काम किया जाए। LSO के चुनाव के बाद LSO को प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया कि प्रोजेक्ट क्या है, कैसे इसके ऊपर काम करना है। उसकी मतलब पूरा उसके साथ TOP साइन हुआ। TOP साइन के बाद LSO में के जो जहाँ COVO बनी हुई थी, COVO में उनके CRP चुने गए। CRP चुनने के बाद उन CRP को वहाँ पे NRSP ऑफिस में उनकी साथ मीटिंग हुई, उनकी ट्रेनिंग बाकायदा ली गई। ट्रेनिंग के बाद उनको CRP जब चुने गए, ये CRP सिखाने वाले के जो टोटल मौजे हैं 8 मौजे, उन 8 मौजों में उनको चुना गया। हर मौजे से एक CRP लिया गया और CRP वही लिए गए जहाँ पे COVO बनी हुई थी और जो के काम करना चाहते थे। और CRP के चुनाव के बाद कुल घरानों का जो है ना बेसलाइन सर्वे हुआ। बेसलाइन सर्वे में उन गाँव की तादाद जो है ना वो हमें पता चली। जैसे कि CRP हमारे हैं उसमें 5 CRP हैं। CRP की तरबियत हुई, कुल घरानों का बेसलाइन सर्वे हुआ 4,484, और इनमें जो गांव थे हमारे वो 40 गांव थे। मौजे जैसे कि पहले बताया वो 8 हैं। यूनियन काउंसिल सिखाने वाला और यहाँ पे सर वाइस प्रोजेक्ट में वाटर पे हमें जब 2010 में सर फ्लड आया, फ्लड के बाद पानी जो है ना पीने के काबिल नहीं था। वहाँ पे हमें ये पता चला कि कुछ ऐसे नलके हैं जो कि पीने के काबिल नहीं है या पीने के काबिल हैं। 20 नलकों का
पानी जो है ना सैंपल के तौर पर हमने दिया, वहाँ उनके टेस्ट करवाए। टेस्ट करवाने के बाद जो है ना उनमें जो है ना 11 फिट है और 9 अनफिट है पीने के, यानी कि 11 जो है ना वो पीने के काबिल थे। और जो पीने के काबिल नलके होते हैं उनकी बाकायदा एक लेबलिंग होती है। पीने के काबिल जो नहीं होते वो लाल कलर का उनका रंग होता है, जो पीने के काबिल होते हैं वो सब्ज कलर का उनका रंग होता है। और पीने के पानी को कैसे साफ करके पीते हैं या वहाँ कम्युनिटी में जाके कैसे उनके ऊपर उनको आगाही सेशन दिए गए, उसके बारे में मैं चाहूँगी कि वाइस प्रोजेक्ट में जो CRP हैं वो अपनी बात करना चाहते हैं। मैं बतौर CRP समरीन फातिमा घर घर जाकर सेशन दिया है और उस सेशन में बताया है कि हैंड वॉश कैसे करते हैं और पानी को साफ कैसे करते हैं। और घर घर जाकर उन औरतों को बताया है कि पानी को कैसे साफ करते हैं, घर पीने के काबिल बनाया जाए। कुछ औरतों को बताया है पानी को बॉयल करके और उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद फिर इस्तेमाल करने के काबिल हो जाता है। जी सरेक नहीं बताओ। हाँ सरेक ही दसो, खैर कोई नहीं, अपनी जुबान ही दसो। अच्छा, कुछ औरतें हैं जहां जरा वो पानी को बॉयल ना करना चाहती हैं, वजह सारे को इतना टाइम कह नहीं। मैं उन्हें औरतें को भी दसेम क्या होंगे तारे घर जितना भी बोलते रहो उन्हें 5 या 6 घंटे तुसा धोपे च रख दियो। उन्हें को रखण दे बाद जरे पानी ठंडा थी वो पीवण दे काबिल थी वेंदे। और कुछ औरतें को ए दसे से जो तुसा तारे पानी पीवण दे काबिल कहनी फ्लड आवन दे बाद, क्योंकि वो पानी दा कलर पीला थी गए और हुंदा टेस्ट भी तब्दील थी गए। लिहाजा हुंदे नाल क्या थींदा पिया, बाल बीमार थींदे पिया, औरतें को मैदे दा मसला थींदा पिया। असां उन्हें को दसे से तुसा ए भी नहीं कर सकते 2 तरीके तो तुसा क्लोरोक्विन दे गोले इस्तेमाल करो। पानी सट ते हुंदे नाल क्या थींदे जरासीम बह वेंदे, पानी पीवण दे काबिल थी वेंदे। बतौर CRP ए फायदा थी गए, क्या होंदे बीमारियां भी कम थी गए और लोगों में शऊर आ गए जो असा इतना पानी साफ करते घर दे विच अपनी मदद आप दे तहत पानी इस्तेमाल कर सकदो। हिफाजती टीका जात जो है ना इसमें हिफाजती टीके तो औरतें लगवाती थी, लेकिन हिफाजती टीके 15 से 49 साल की औरतें भी लगवाना चाहिए, इसके बारे में पता नहीं था। या कुछ औरतें ऐसी थी जो कि टीके नहीं लगवाती थी, कहती थी कि हमारे बच्चे बीमार जो हैं इसके ऊपर मसले मसाइल जैसे होते हैं वो नहीं लगवाने देती थी। इसके बारे में मैं चाहूंगी कि मेरे वाइस CRP के जो CRP हैं वो बताना चाहेंगे। मेरा नाम सारू शुमैला अशरफ है, मैं वाइस CRP हाँ। मैं अपना वहाँ ते हिफाजती टीके दे सेशन करवाए औरतां 15 लाते 45 साल दे औरतां अपना टीके ना लवे जान। बालें को भी यह गाल करे जान के सारे बालें को तो बुखार आ वेंदे, बीबी आसानी से लवे जा टीके वाला सारे बालें दी पैदाश जो रोकथाम थी वेदी कमी थी वेदी सब बाल का ना पैदा कर सकूं। मैं वहीं ते समझाएं बीबी ना तोरे बाल भी या थी ना बीमार थी ना कशा थी ए जरे टीके अपना तोरे अंदर वाइंदे बीमारियां पहुंचा तो कहीं नहीं पता हुने ना लड़ते ने। आखिर हुकूमत इतना कुछ किती पे तोरे संगे तोरे फायदे संगे हिन बीबिया तुसा मेरी गाल मनो यकीन करो। अच्छा उन्हें ता मेरी गाल मन की दे मैं अपना वांते वैक्सीनेटर नाल राब्ता कीते मैं तुने को इंजेक्शन लवाए उन्हें बालें को भी इंजेक्शन छीन पहले पैदाश दे फौरन बाद टीका लगाए वेंदे, दूजा टीका 2.5 महीने बाद, तीजा टीका 4 महीने बाद, 5वां टीका 9वें महीने बाद और जरा 6वां टीका है वो 15 महीने बाद लग दे। और जरा टीके बीमारियां पहली अपना TB गर्दन तौर बुखार पोलियो खसरा ये सारे बीमारियां इन्हें अपना टीके ही कवर करें दें। और मेरी उन्हें गाल बीबी मन की दे जेना बीबी हान उन्हें आके बाकी बाजी ना ठीक आदि वधिया साकू समझेंदी पे और माशाल्लाह वो अपना कैल की पेन और अपने जरे जरे ना लवे जान टीके और यक्या और तो टीके लवान पै गए अपने बालें को भी अपने आप को भी। सर मैं बहुत खुश हाँ कि मेरी वजह के नू इन्हें को कुछ पता चल गए और मैं बहुत ज्यादा खुश हाँ। शुक्रिया अदा उन्हें औरतें दा भी कीते कि मेरी गाल ने मन की दिए और LSO संघा दा भी जाए उन्हें में कोई काबिल बढ़ाए मेरे को CRP बढ़ाए ने तो मैं अपना बस्तियां च गई हाँ सेशन करवाए। कूड़ा क्रिकेट के बारे में जो है ना अपना तजर्बा जो है ना एक CRP है वो शेयर करना चाहती हैं।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रशीदा बीबी है। हाँ, मेरा नाम रशीदा बीबी है, मैं नायब सदर हूँ यूनियन काउंसिल सिंगानी वाले संगत की। तो कूड़ा क्रिकेट के बारे में सर हमें कोई नहीं पता था, हम राजपूत घराने से ताल्लुक रखते हैं और हमने फिर कमेटी डाली, जिस तरह एक कमेटी डाली, कमेटी डाल के फिर हमने हर औरत ने उसके फ्लड के दौरान, हम राजपूत घराने से ताल्लुक रखते हैं, हमें कोई बाहर नहीं निकलने देता था। तो हमने फिर मोहल्ला सैयद है, मोहल्ला राजपूत है, मोहल्ला महाजर है, मोहल्ला औखरमंद है, हमारी 8 तंजीमें हैं सर, उसमें माची भी शामिल है। तो हमने सब ने रल के, जिस टाइम हमें बाहर नहीं निकलने देते थे तो फिर हमने अपने आदमियों से कहा भी हम बाहर निकलेंगे, जो कोई हम ऐसी वैसी ऊंच हरकत करेंगे तो हमें बाहर ना निकलने दे। तो फिर सर हमारे साथ एक सैयदनी, एक मैं और एक हमारी राजपूत, हमने ये कमेटी बनाई, अपनी ये बना के वो इकट्ठी होके हमने ये कमेटी डालनी शुरू कर दी थी। तो हमने 30 रुपए महीने की कमेटी डाली, 30 रुपए कमेटी डाली। तो हमने, किसी बच्चे का यूनिफॉर्म नहीं था, क्यों उस टाइम तो था फ्लड का दौरान, बहुत गरीबत थी। तो हमने ये 30-30 रुपए इकट्ठे करके फिर हमने कमेटी डाली, कमेटी डाल के फिर हमने, किसी का यूनिफॉर्म नहीं था, किसी का जूता नहीं था, कोई बच्चा स्कूल में नहीं जाता था, किसी के घर आटा नहीं था सर, हमने इस तरह करके अल्हम्दुलिल्लाह आप अपनी वो कमेटी डाली। और सेहत सफाई के बारे में हमें कोई पता कोई नहीं था, ना हमारी सहूर था उस टाइम पे। फिर हमने ये 10-10 रुपये इकट्ठा करके फिर हमने से अपनी गलियों की सफाई करवानी शुरू करी सर। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गलियां भी साफ है, हमारे मासरा भी साफ है और अल्हम्दुलिल्लाह सर हम अपनी यूनियन काउंसिल के वजह से आज हम यहाँ तक आ गए। हम यूसी में भी आते थे, हम राजनपुर भी जाते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम हर जगह पाए बैठे हैं सर। जैसे कि सर कूड़ा क्रिकेट और तालीम के बारे में मेरी एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर ने पूरा बता दिया है। और वाइज प्रोजेक्ट में 4 कंपोनेंट के अलावा 2 कंपोनेंट और हैं, खानदानी मनसूबाबंदी और बुनियादी शहरी हकूक। जो है ना, खानदानी मनसूबाबंदी में उनको आगाही सेशन दिए जाते हैं, उनको बताया जाता है कि खानदानी मनसूबाबंदी कैसे करते हैं, फैमिली प्लानिंग कैसे होती है। उनमें फैमिली प्लानिंग के कैंप्स का इनाकाद किया गया, 2 कैंप्स का इनाकाद किया गया। और खानदानी मनसूबाबंदी पर जो उनको सेशन दिए वो 82 सेशन उनको दिए गए, उसमें उनको बताया गया कि कैसे कैसे फैमिली प्लानिंग करनी है। और बुनियादी शहरी हकूक पर जो सेशन है, बुनियादी शहरी हकूक में उन लोगों को मतलब खवातीन में ये शऊर मतलब पता तो होता है, लेकिन खुद का ये हमारा भी कुछ हक है। जैसे कि एक निकाह जब होता है तो निकाह में औरत को क्या क्या उसमें शराइत हैं, सारा उनको पता होना, ये उसका बुनियादी हक होता है। शनाख्ती कार्ड नहीं है, शनाख्ती कार्ड ये बनवाए, उसको ये पता हो कि शनाख्ती कार्ड उसके लिए कितना अहम है। या वोट डालने का जो हक होता है, वो मर्द जहाँ पे कहते हैं कि हाँ भाई जाओ वहाँ पे वोट डाल दो, उसकी मर्जी से वोट डाल दीजिए, नहीं, ये उसका बुनियादी हक है कि वो अपनी मर्जी से जिसको चाहे वोट डाले। इससे उसमें ये शऊर पैदा हो कि वो किसको वोट डालना चाहती है या किसको वोट डाले। इसमें नादरा कैंपेन जो है ना शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए, क्योंकि शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए कुछ मर्द ऐसे थे जो कि खवातीन को बाहर नहीं निकलने देते, लेकिन वहाँ पे नादरा कैंपेन जो है ना वो लगवाएगी। नादरा कैंपेन के जरिए उन्होंने अपने घर बैठे, उनके शहर में नादरा कैंपेन आई, उन्होंने वहीं पे अपनी जो है ना शनाख्ती कार्ड बनवाए और डीएचओ के साथ मीटिंग की। वो 2 मीटिंगें हुई, यानी कि उनको बुनियादी शहरी हकूक पर सेशन भी दिए, बुनियादी हकूक के बारे में उनको सब कुछ बताया गया कि आपका क्या क्या बुनियादी हक है। बच्चों का तालीम पर पूरा हक है, लड़कियों का तालीम पर पूरा हक है, वो अपना हक इस्तेमाल कर सकती हैं, तालीम हासिल कर सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नाम शमीम बीबी है। तंजीम दे तरफों मैं अपने बच्चे ने बेफारम बनवाए, शनाख्ती कार्ड बनवाए, को जिन्हें को तलीम दी थी, शऊर आ गई अपनी तंजीम दे तरफों साको। हूँ देहाती लोग जट लोग कुशा करना जानते हाँ से, हूँ जरा कोई शहूर बेच आ गई, अपने बच्चे को तलीम दी थी से, शनाख्ती कार्ड बनवाए से, बेफारम बनवाए से, हूँ माशाल्लाह सा ढेर सारा अपना कोई समझ गयो, तरक्की आ गई, साको सापड़ा सियाने थी गयो। वाइज प्रोजेक्ट से लोगों की मजमूई रवैया में जो तब्दीली, बहुत ज़्यादा रवैया में तब्दीली है। पहले तो हमें बहुत सारी
मुश्किलात आई, क्योंकि लोग हमारी बात नहीं सुनते थे, कहते थे कि हाँ आप लोग क्या देने के लिए हमें आए हैं, यहाँ पे सेशन जो देने आ जाते हैं रोजाना हर महीने में, तो हमें क्या देंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जब उनको बार बार गए, एक बार गए बात नहीं सुनी, दूसरी बार गए बात नहीं सुनी, लेकिन जब बार बार उनके पास जाते रहे तो उनके रवैये में तब्दीली आती गई। वो लोग अपने आप को तब्दील करना चाहते थे, अपने घरों को, अपने आप को, अपने बच्चों को, उनमें ये तब्दीली आ गई कि उन्होंने हमारी बात सुननी शुरू कर दी। और वाइज प्रोजेक्ट ही है जिससे हमारे मतलब वैसे तो हमारा CIF कर्जा चलता है कि हमारे COVO जो है ना उनके साथ मीटिंग होती रहती है, लेकिन वाइज प्रोजेक्ट से इससे ज्यादा मजबूती आई। हम हर महीने में उनके साथ हमारी बाकायदा मीटिंग्स होती, उनके घरों में, उनकी कम्युनिटी में जाकर हम उनके साथ सेशन करते हैं। इससे ज्यादा इससे हमारी राब्ता साजी में जो है ना वाइज प्रोजेक्ट से मजबूती आई। हम लोग ज्यादा इसमें मतलब मशहूर हो गए। हमारी LSO जो है ना उसमें ज्यादा मजबूती से काम करना शुरू हो गया कि हर CO में पहुंच जाती, हर VO में पहुंच जाती। और वाइज प्रोजेक्ट से ही हमारे जो ना हुकूमती इदारे उनके साथ राब्ता साजी में बेहतरी आई। हमें ये पता चला कि तालीम का जब मसला आता है तो हमें किस डिपार्टमेंट से राब्ता करना चाहिए। अगर हमें सेहत का मसला है तो हमें किस डिपार्टमेंट से राब्ता करना चाहिए। सेहत के डिपार्टमेंट से जाना चाहती है। BHU है, जैसे अस्पताल के जो MO साहब है, उनके साथ मीटिंग हुई, हमारा राब्ता उनके साथ मजबूत हुआ। और वाइज प्रोजेक्ट के ही LSO की जो है ना हुकूमती इदारों तक रसाई हुई। हुकूमती इदारों के साथ हमारी राब्ता साजी में मजबूती आई। हमें पता चला कि किस किस मसले के लिए किस किस के पास जाना चाहिए। वाइज प्रोजेक्ट से हमारी LSO जो है ना वो ज्यादा मशहूर हुई, हमारी LSO मजबूत हुई। NRSP और LSO जो है ना इसके साथ हमारा राब्ता ज्यादा मजबूत हुआ। और कम लागत से ही हमने इसमें अपनी नेक नामी हमारी हुई। हम ज्यादा अपनी मजबूती से अपनी LSO में यूनियन काउंसिल में काम कर सकते थे। वाइज प्रोग्राम के तहत जो है ना महकमा सेहत के तामुन के साथ जो की गई सरगर्मियां हैं उसमें आपको नजर आ रही होंगी कि BHU के साथ मीटिंग्स है, पोलियो का आलमी दिन है उसमें हमने मामलत की है, LSO मेंबरान की पोलियो वाक में शिरकत है, LSO मेंबरान की पोलियो की तरबियत में शिरकत है। ये सारे मुहिम सरगर्मियां जो है ना आप देख सकते हैं। और PHED के तहत जो पानी के नमूने की टेस्टिंग है, जैसे कि मैंने पीछे बताया है कि हमने 20 नलकों की टेस्टिंग करवाई है, उसमें 11 जो है ना फिट आए हैं, 9 अनफिट हैं। उसकी कुछ तस्वीरें हैं आपको नजर आ रही हैं। और वाइज प्रोजेक्ट के तहत ही LSO ने जो सिखाने वाले की सतह पर सफाई मुहिम की है अपनी मदद आपके तहत, जो आपको इसमें नजर आ रही है कि पहले कितना कूड़ा क्रिकेट जमा था और अब माशाल्लाह कितने साफ सुथरे हैं। जैसे कि SPAP के बारे में मैं पहले बता चुकी कि SPAP प्रोजेक्ट में हमारी LSO की जो है ना बराह रास्त इस प्रोजेक्ट में काम नहीं किया, इनके साथ मामनत की है, निशानदेही की है। जैसे कि हमारी COVO बनी हुई थी उन इलाकों में जहाँ पे COVO बनी हुई थी वहाँ पे ये प्रोजेक्ट जो है ना स्कोर के तहत काम करते हैं। जिनका स्कोर होता है वही सिर्फ काम कर सकते हैं, और जो COVO बनी होती है उसमें तो सारे ही शामिल होते हैं। तो इसमें उनकी निशानदेही की गई। जो तंजीमात का क़याम था वो तादाद आपको नजर आ रही है कि 99 है। और ये हमारी COVO जो बनी होती है वो खवातीन पे ही होती हैं, खवातीन ही इस पे काम करती हैं। और SPAP प्रोजेक्ट के तहत हमारे जो UC सिखानी वाला में रिहायशी प्लाट्स दिए गए। इसमें रिहायशी प्लाट्स में जो है ना एक औरत को उनकी निशानदेही ये करवाई कि वो बिल्कुल गरीब है, उसके पास कोई ज़मीन नहीं है, रहने का वो कोई भी जरिया नहीं है रहने का, किसी के घर रह रही है। तो इसमें उसे ना प्लाट्स दिए गए। पूरी छानबीन करने के बाद 1 लाख रुपए तक उनको प्लाट्स दिया जाता है, जो कि वहीं से जहाँ पे वो रह रही होती है या कहती है वहीं से उनको खरीद कर ये सारा इदारा ही पे करता है उनको मकानात बनवा के दिए। उनकी तादाद जो है ना आपको नजर आ रही है कि 76 घराने 68 जो है ना घराने मकानात बन गए हैं, बाकी जो है ना वो बनने में है। असासा जात दिए गए, जैसे बकरियां वगैरह हैं, बकरियां लेने के लिए जो खवातीन है उन खवातीन को चुना गया जो कि मकान तो उनके पास थे, मकान उनके पास मौजूद थे, लेकिन वो गरीब थी, अपनी घर की आमदनी को बढ़ाना चाहती थी। वो चाहती थी कि हम लोग अपनी जिंदगी को मजीद खुशहाल करें। तो उनको जो है ना उनकी ये निशानदेही की गई, स्कोर के जरिए उनको बकरियां वगैरह दी गई। बकरियां जो है ना उनको 26,000 की बकरियां, पहले 2 बकरियां दिलाई थी, अब जो है ना 35,000 तक कह रहे हैं कि 35,000 तक उनको बकरियां दी जाएंगी। तरक्याती स्कीम्स हैं, 14 स्कीमों पर काम हो गया, जिसमें
کہ وہ لیٹرین وغیرہ ہیں, پکے کھالے ہیں, سولنگز وغیرہ ہیں جن کو راستے کا مسئلہ ہوتا تھا, ان لوگوں نے اپنی علاقے میں اپنی سڑک کے سولنگز وغیرہ بنائی. فنی تربیت ہے جس میں ان ممبران کو سینٹر, کسی تنظیموں میں سینٹر کھولے گئے, ان کو سینٹر دیے گئے. کسی نے مطلب فیبرک ورک کا اپنا سینٹر کھلوایا, کسی نے کچھ سیکھا چنری کا, کسی نے کچھ, اس میں سارے تربیت کے سینٹر دیے گئے. فوڈ بینک, اس میں سر جو ہے نا فوڈ بینک ہماری LSO کے تحت یہ فوڈ بینک چل رہا ہے جس میں گندم فراہم کی جاتی ہے جن کا سکور ہوتا ہے. اور سب سے پہلے جو ہے نا فوڈ بینک کا جو ایک بینک میں ان کا وہ 18 لاکھ روپے تھے, 2.5 لاکھ روپے نکال کر اس میں سے گندم لی تھی تاکہ جو غریب عوام ہے جو کہ گندم مہنگی ہوتی ہے وہ نہیں لے سکتے, اپنے علاقے میں ان کو مہنگی ملتی ہے یا ان کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا گندم وہ خرید سکے, تو اس سے جو ہے نا فوڈ بینک سے وہ اپنے سکور کے ذریعے, ان کا سکور جن کا ہوتا ہے وہی گندم اسے لیتے ہیں. پہلے جو پچھلے سیزن میں ان کو 41 بندوں کو فوڈ بینک سے گندم فراہم کی گئی تھی. اب چونکہ دوبارہ ہم نے گندم نہیں خریدی کیونکہ گندم بہت زیادہ مہنگی ہو گئی تھی, نہیں مل رہی تھی اس بحران کی وجہ سے, تو اس لیے اب جو 41 سے 81 بندے جو ہے نا وہ مستفید ہوئے. پہلے 41 بندوں کو 150 kg گندم فراہم کی تھی اور اب جو ہے نا 81 بندوں کو 80 kg گندم دی ہے. اس میں آپ کو خوشحال گھرانہ نظر آ رہا ہے کہ یہ مکان ان کو بنوا کے دیا ہے. سپائی پروجیکٹ میں یہ بڑے خوش ہیں, سولنگ بنی ہوئی ہے, ٹاف ٹائل کی سولنگ ہے, اور ایک عورت نے بکریاں وغیرہ لی ہوئی ہیں. ماشاءاللہ اب ہمارے UC سکھانی والا میں لوگ خوشحال زندگی جن کو یہ ملے ہیں احساسات زندگی گزار رہے ہیں. السلام علیکم. میں ہوں انور بی بی. میں بہت غریب ہوں, میرا سکور نکلے, میرے کو بکریاں ملے 26,000 دیا, 500 کرایہ ملے بلا, ہوں میرا بکریاں 6 تھیاں کھڑیاں. میں بہت غریب ہوں, میرا سکور ہے بلا, میرے کو سکیم بڑی ہے میری, مطلب سارے ممبر بڑے میں من چونیاں نے بکریاں دائی تھے, میرا سکور ہے جہاں میری ہے پئی. السلام علیکم. منا خورشید بی بی ہے. السلام علیکم. منا خورشید بی بی ہے. اسا غریب ہاں سے ڈاڈھے نا بی بی میں بیوانی میں اسا غریب ہاں سے ڈاڈھے, ساکو مکان ملے, سکور ساڈا رل گئے والا ساکو مکان ملے. اسا نہ زمین آلے ہاں سے نہ کشا آلے, سڈے اپنے راہ کے آبادیاں کہنا ہن, اسا بے دئی مزدوری کرنے ہاں سے والا سارے سکور رل گن, ساکو مکان مل گن, سارے رل مل کر رہی تے. ایک گال ایسا یہ کیا یہ تنظیم بنائی ہے, تنظیم بنا کر رہی تے والا ہن ایک گال یہ کہ مشورہ کار کر رہی تے والا اسا ممبر بنی سے والا ساریاں کے رال کر رہی تے. بلی بھئی غریب ہیں, انہیں دی اپنی زمین کائیں نہیں, انہیں دی اپنی راہ کی آبادی کائیں نہیں, اے بہت سارے غریب ہیں, انہیں کو مکان ملیا ونیا والا ساکو مکان ملیا گیا. فوڈ بینک کے تحت گندم کی تقسیم کی جو اس کی سرگرمیاں آپ کو نظر آ رہی ہے کہ عورتیں جو ہے نا فوڈ بینک میں اپنی اعتماد سے وہاں پہ آئی ہیں, گندم انہوں نے لی ہے. یہ کچھ تصاویر ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں سپیب پروجیکٹ میں ہماری پریزنٹیشن ہے ہماری UC سکھانے والا کی, اس کی کچھ تصاویر شیئر کی جا رہی ہیں. افاد میں ہے اس کی تصاویر ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں, اور اس میں پودا وغیرہ لگا رہے ہیں. غربت کے خاتمہ کے لیے LSO سنگت کی جو سرگرمیاں ہیں, غریب لاچار افراد میں اثاثہ جات کی تقسیم ہے, فنی تربیت کی فراہمی ہے. غریب لاچار افراد وہ ہیں جن میں کہ ان کو کاروبار کھولنے کے لیے ان کو 50,000 تک کے اثاثہ جات دیے گئے یا 25,000 تک کے دیے گئے. فنی تربیتوں میں جو کہ کار ڈرائیونگ ہے جو کہ سیکھنا چاہتے تھے ان کے
खवातीन के जो मर्द थे, या फिर मोबाइल रिपेयरिंग है, चुनरी वर्क है, अड्डा वर्क है, ये सारी फनी तरबियतें LSO संगत ने अपनी यानी कि गुर्बत के खात्मे के लिए ये सरगर्मियाँ की हैं। और बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो बेस्ट कार्ड में मावनत है वो 50 की मावनत की है। एहसास प्रोग्राम में उनके गरीब घरानों की जो रजिस्ट्रेशन करवाई थी वो भी तादाद आपको ऊपर देख सकते हैं। LSO ने अपनी मदद आपके तहत, जैसे कि मेरी एग्जेक्टिव बॉडी के मेंबरान ने भी शेयर किया कि अपनी मदद आपके तहत उन्होंने क्या क्या काम किया कि गरीब बच्चियों को यूनिफॉर्म, किताबों की फराहमी है। नादरा के साथ नादरा वैन की, जैसे कि नादरा वैन का मैंने बताया कि शनाख्ती कार्ड बनाने का मसला होता था, और यूनिसेफ वालों के साथ ताउन से सेहत और सफाई पर सेशन है, बर्थ रजिस्ट्रेशन है, बेब फार्म है। बेब फार्म के बारे में भी एक मेरी मेंबर ने शेयर किया है। निकाह नामा डेथ रजिस्ट्रेशन है, खवातीन का विरासत में हिस्सा की आगाही है। ये सारे काम, लेटरीन वगैरह कहीं पे नलका जात की फराहमी है। और सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में बच्चों और बच्चियों का दाखिला जो है ना, कम्युनिटी की सतह पर यूनिसेफ के ताउन से लेटरीन की फराहमी में मामलात, गरीब और लाचार घरानों की बेस्ट सर्वे में निशानदेही कराई है। एहसास प्रोग्राम के तहत गरीब और लाचार घरानों की रजिस्ट्रेशन है। और रीड्स पाकिस्तान के जो कि घराने मतलब अपने उनको उनके आगाही सेशन दिए, उनको कहा गया कि आप सब्जी उगाने से अपने घर में ताज़ा और फ्रेश सब्जी भी ले सकते हैं और अपनी आमदनी में भी इजाफा कर सकते हैं। ये सारी तरबियत उनको दी गई LSO ने। और सरकारी इदाराजात से राब्ता साजी की है, यूनियन कौंसिल है, नादरा है, महकमा तालीम है, महकमा सेहत है। इन सारे सरकारी इदारों के साथ राब्ता साजी करके अपने मसाइल को हल करने की कोशिश। गैर सरकारी इदारा जात हैं, उनसे भी राब्ता साजी की है, उनके साथ भी काम किया है। कतर चैरिटी, संगतानी है, यूनिसेफ है, ये सारे इदारे आपको नजर आ सकते हैं कि फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक है। और ये सारी बैंकों से कर्जे में उनकी मामनत की है, उनके साथ राब्ता साजी में उनके साथ मदद की है। रीज पाकिस्तान है, ये सारे इदारों की मदद से हमने अपनी LSO में बेहतरी के लिए काम किया है। और राब्ता साजी से ही कोरोना से मुतालिक, जैसे कि बहुत बड़ा मसला दरपेश है हमारे मुल्क को, कोरोना के ऊपर आगाही सेशन दिए हैं, कम्युनिटी में जाकर लोगों को बताया है कि आप लोग कोरोना से कैसे बचें, सफाई सुथराई का कैसे करें। सारी तस्वीर आपको नजर आ रही होगी कि मास्क की हमने तकसीम किया है, मास्क बनाने की तरबियत दी है कि जो लोग मास्क खुद नहीं खरीद सकते वो घर में मास्क बनाएं, बनाकर अपने आप को इस वबा से महफूज रखें। इदारा जात के साथ राब्ता साजी करके हमने अपनी कम्युनिटी में क्या क्या बेहतरियाँ की हैं वो आप देख सकते हैं कि सपैप प्रोजेक्ट के तहत बीज की तकसीम है, और इसमें इसके साथ मीटिंग्स वगैरह चेक देते हुए उनको दिखाया गया है। इसमें सर मैं ये कहना चाहूँगी कि इदारा साजी ही है जो जिसमें हम इस काबिल हुए हैं, मैं इस काबिल हुई हूँ, मेरी एग्जेक्टिव बॉडी के मेंबरान, मेरी LSO सिखाने वाला के जो सारे मेंबरान हैं, इसमें एग्जेक्टिव बॉडी के मेंबरान भी हैं और 25 और मेंबरान भी हैं। इन सब खवातीन को मुझे ये मौका मिला है कि इस प्लेटफॉर्म पे आके मैं कुछ कह सकूं, कुछ बात कर सकूं। मेरी UC सिखाने वाला की जो खवातीन है वो अपने बारे में कुछ कह सकेंगे, क्योंकि ये इदारा साजी ही है। ये इदारे अगर ना बनते, ये COVO ना बनती, ये LSO ना होती, तो हम लोग भी यहाँ आके बात ना कर रहे होते। हमें भी इतना ये मौका ना मिलता कि हम भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। अपनी मदद आपके तहत हम लोग क्या कर सकते हैं। आज तो बड़ी फख्र से हमारी UC सिखाने वाला की जो औरतें वो कहती हैं हम लोग अपने दफ्तर जा रहे हैं, हम बैंक जा रहे हैं, हम मंडियों में जा रहे हैं। हमें इतनी ज्यादा हमारे दिल में ये मतलब मजबूती आई है कि हम लोग बाहर जाकर अपनी बेहतरी के लिए जा सकते हैं। मार्केट है, मंडी तक गए हैं और अपनी घर में हम अपनी इमदाद करें। ये इदारा साजी ही है। अगर इदारा ना होता तो आज हम इधर आकर बात करने के काबिल ना होते। आज मेरी खवातीन इधर आकर अपनी इज़हार ख्याल ना कर रही होती। और सेहतमंद माशरा जो है ना, उसकी तरफ हमारा कदम है। हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। अब पहले की निस्बत अब हमारी UC सिखाने वाला में लोग इतने समझदार,
اتنے سمجھدار شعور آ گیا ہے کہ وہ ہماری بات سنتے ہیں, اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان میں ایک شعور آیا ہے کہ وہ اپنے بنیادی حقوق کا ان کو پتہ چلا ہے. خواتین میں ذمہ داریوں میں تبدیلی آئی ہے. اور جو منڈیوں تک جانے کے لیے بڑی آر سمجھا جاتا تھا کہ ہاں عورتیں اور منڈیوں میں جائیں, اب عورتیں منڈیوں میں جا کر اپنی پسند سے اپنی بکریاں لے رہی ہیں. اپنی جو مکان جن کو ملے ہیں ان کو یہ اختیار ہے کہ ہاں یہ مکان میرے نام ہے. خواتین جن کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جا رہا, آج وہی خواتین کو پتہ ہے کہ میرا جائیداد میں بھی حصہ ہے, اس کے نام پہ بھی مکان ہے, اس کے نام پہ بھی مکان ہے. وہ اپنے نام کی ایک اس نے دکان کھولی ہوئی ہے. جیسے دکان میں بیٹھنے کے لیے خواتین کو کہا جاتا ہے خاتون اور دکان میں بیٹھے, وہ قرضہ اٹھا کر اپنا ایک دکان کھولتی ہے, اپنا کاروبار بڑھایا ہوا ہے, اپنی آمدنی میں اضافہ کیا ہوا ہے, اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہے, اپنی زندگی کو بہتر بنا رہی ہے. اور وہ ہر چیز کے لیے اپنے مرد کی, اپنے شوہر کی محتاج نہیں ہے کہ اس کو شوہر دے گا, اسے لے کے جائے گا تو وہ کرے گی, نہیں تو نہیں کرے گی. آج اس کا ایک ادارہ بن گیا ہے, LSO ادارہ ہے, جہاں پہ وہ اپنی بڑے ٹھاٹ سے آ کر اپنا مسائل پر حل قابو پاتی ہے. خواتین کی ترقیاتی سرگرمیوں میں جیسے کہ سر پیچھے میں اتنی تفصیل سے بتایا ہے کہ کیونکہ کمیونٹی میں خواتین ترقیاتی سرگرمیوں میں آگے آئی ہیں, ان کو موقع ملے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتی ہیں. مقامی ادارہ سازی ہے, NRSP اور دیگر تمام ادارہ جات کے لیے بطور سرمایہ ہے. کوئی بھی ادارہ آئے ان کو پہلے سے ہی ہماری جو LSO ہے اس کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رابطہ کرنے کے بعد وہ اپنے پروجیکٹ جو ہے نا اس UC میں کام کرتے ہیں. ہم لوگ ہی ان کے ساتھ ان کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں آ کر کام کریں, کیونکہ پہلے سے ان کو بنے بنائے CO VOs مل جاتی ہیں, تنظیمات بنی ہوئی ہوتی ہیں. کوئی بھی ادارہ ہے, NRSP ہے یا باقی کچھ کوئی ادارے ہیں پروجیکٹ میں کام کرنا چاہیں تو وہ پہلے ہم سے رابطہ کرتے ہیں, ہماری خواتین سے رابطہ کرتے ہیں, پھر وہ وہاں پہ آ کر اپنی کام کرتے ہیں. ادارہ ہو یا نہ ہو, کوئی ادارہ ہماری LSO میں کام کرے یا نہ کرے, اس کے بعد بھی ہم اپنی UC سکھانی والا میں خود مختار ہیں کہ کوئی بھی کام جو ہو گیا ہے جیسے کہ سولنگ وغیرہ بنا دیا ہے تو ہم اس کی نگرانی کرتے ہیں کہ کسی کہیں پہ سولنگ ٹوٹی ہوئی ہے اس کو بتا دیں کہ ہاں آپ لوگوں کو فلاں ادارہ آ کے کام کر گیا ہے, آپ اس کی حفاظت کریں. ہم کہنے کا ہمیں اختیار ہے, وہاں پہ جا کر ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ یہاں پہ یہ کام جو ہے آپ نے خراب کیوں کیا ہے. ادارہ اگر چلا بھی جائے اس کے بعد بھی ہم اپنی علاقے میں جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں ان کو قائم رکھتے ہیں. اور جو خواتین ہیں ان کو قانونی معاملات میں بھی شمولیت ملتی ہے. جیسے کہ پہلے بتایا کہ جو مرد ان کو کہتے ہیں کہ ووٹ ڈالو تو ووٹ ڈالتی ہے, نہیں تو نہیں ڈالتی. اب وہ اپنی مرضی سے ووٹ ڈالتی ہے جس کو ڈالنا چاہتی ہے. آج وہ عورت خود مختار ہو گئی ہے اور وہ LSO ہماری جو LSO ہے وہ NRSP کے ساتھ بطور جانشین کے طور پر کام کر رہی ہے. تنظیمات کی فعالی جو ہے نا, جیسے کہ غربت میں کمی لانے کے لیے غریب گھرانوں کی تنظیم سازی ہے. اس میں ہم نے معاونت کی ہے کہ LSO کی مستقبل کی جو منصوبہ سازی ہے, وائز اشارہ جات کی, جہاں پہ جن علاقوں میں جاتے ہیں کہ کیا کیا مسئلے مسائل آ رہے ہیں. CIF کے تحت بلا سود قرضہ جات کی جو ترسیل ہے کہ CIF قرضہ کیسے دیا جاتا ہے. سب سے پہلے تو ہم لوگ COVO میں جاتے ہیں اور وہ ممبران جو ہے نا وہ خود کہتے ہیں کہ ہم لوگ قرضہ اٹھانا چاہتے ہیں. سپیب پروجیکٹ ہے, اس کے ساتھ معاملت کیا ہے کہ ہمارے علاقے میں کون کون سے غریب گھرانے ہیں جن کو کیا مکان کی ضرورت ہے یا سولنگ وغیرہ نہیں ہے. اس میں اس کا ہم لوگ بتاتے ہیں. LSO کے استحکام کے لیے سرکاری اور غیر سرکاری ادارہ جات کے ساتھ رابطہ ہے کہ ہم اپنی LSO کو کیسے مضبوط اور استحکام کر سکتے ہیں. اور NRSP کے تحت چلنے والے جو پروجیکٹ ہیں ان میں معاملت ہے. خواتین میں قانونی بااختیاری آئی ہے اور ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے کہ لوگ اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں. اس میں ان کے ساتھ آگاہی مہم کی ہے. اور زیادہ سے زیادہ جو غریب گھرانے ہیں فوڈ بینک میں, وہ آج فوڈ بینک سے آرام سے اپنی گندم لیں گے اس سے, کیونکہ ہمارا ابھی تو کیونکہ بحران کی وجہ سے گندم بڑی مہنگی مل رہی تھی, نہیں مل سکتی. ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو غریب گھرانے فوڈ بینک سے مستفید ہوں. LSO کو درپیش مشکلات جو ہے نا, بینکوں میں خاص طور پر بینکوں میں زیادہ
मसला होता है CIF जो कर्जा देते हैं, ये MCB एक बैंक देता है, इससे तादाद ज़्यादा होती है कर्जों की, और वहाँ पे हमें शिकायत ये मिलती है कि हम औरतों को अंदर नहीं जाने देते, या रश ज़्यादा होता है। वहाँ पे मसला होता है लोगों को पैसे निकलवाने के लिए SMS के ज़रिए, और मकामी लोगों का गैर ज़रूरी शिकायत, जैसे कि आप लोग बार बार आ जाते हैं हमारे इलाकों में, हमें आप लोग क्या देंगे, हम हमारे लिए क्या लेके आए हैं, हमें क्या करेंगे। CRP जो होते हैं उनका कम मुआवजा होता है, कम मुआवजे की वजह से कुछ CRP काम करते हैं, कुछ CRP नहीं काम करते। जो CRP का जो है ना वो फुकदान ज्यादा होता है LSO को। और मैं आखिर में शुक्रिया अदा करना चाहूंगी शुएब सुल्तान साहब का कि उन्होंने आज हमें मौका दिया है कि हम इधर आकर बात कर रहे हैं, मुझे बात करने का मौका मिला है, अपनी LSO की नुमाइंदगी करने का मौका मिला है, इस प्रेजेंटेशन का देने का मौका मिला है, मुझे बोलने का मौका मिला है। क्योंकि अगर शुएब सुल्तान साहब ये NRSP इदारा ना बनाते तो आज हम लोगों का भी ये इदारा ना होता, हमारी LSO भी ना होती, आज हम लोग भी ये काबिल ना होते इसके कि यहाँ पे आकर बात करते, अपने मसाइल पेश करते, अपना जो ख्याल है हमारा, जो हमारा एक्सपीरियंस है वो शेयर ना कर सकते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये मौका दिया है, और आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगी मेरी एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो मेंबरान हैं, सारे इसके ऊपर आपसे बात करना चाहती हैं। जी जी बात करना जी बेट दसो जी, अपनी आवाज अपनी जुबान जी गल करो दूसरी सारी। जी सर, अब मैं चाहती हूँ कि आप हमसे कुछ बात करें, हमें गाइड करें, और मेरे दिल से मतलब मुझे अल्फाज ही नहीं मिल रहे कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं कि मैं आज हमारी UC सिखाने वाला जो है ना इधर आकर आपसे बात करने का हमें मौका मिला है, और आप अपने जो ख्यालात हैं हमारे साथ शेयर करें। जी सर। आप कह रही थी कि कुछ और लोग भी कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी में सर बात करना चाहते हैं। हाँ, उनसे बात कर लें, उसके बाद हम बात करेंगे आपसे। सर मैं आपका शुएब सुल्तान सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरा शुक्रिया तो बहुत हो गया, आप अपनी बात करें। शुक्रिया सर, हमने देखो हमारे साथ कोई नहीं निकलने वाला था, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ सैयद भी मौजूद है, और हमारे साथ राजपूत भी मौजूद है, हमारे साथ NRSP के साथ, हमारे साथ सब अवाम, हर कौम हमारे साथ मौजूद है सर, जो उनसे हम निकल नहीं सके करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह बैंकों में भी जा सकते हैं, राजपूत होके, सैयद होके, और बकरियां भी ले सकते हैं, मंडियों में भी जा सकते हैं। आपका शुएब सुल्तान शुक्रिया सर। एक ही गल करो अपनी जुबान सुन लेंगे, समझ जाएंगे शुएब साहब। हाँ ठीक है, बिल्कुल, ये भी समझ गया मैं, बहुत शुक्रिया आपका। और कोई कुछ कहना चाहे? अस्सलाम वालेकुम, मेरे नाम खुर्शीद बीबी है, आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आप दी वजह सारी गुरबत कम थी पई है, असारे जरे तो अपनी मदद अपने तौर ते अपने बच्चों के स्कूल खुलवाई बैठे से, हेड मास्टर नाल गल करके मस्जिद विच स्कूल खुलवाई बैठी हाँ, मैं जरे अपने बच्चे अपनी मदद ते आप पढ़वेंदी पई। आप बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। सबने बात कर ली है राशिद? हेलो सर, वो पीछे रह गए असा मेंबरान से सदर मैनेजर खुर्शीद बीबी, कनीज बीबी, असा वाला बैंक गए से, उता अपना अंगूठे लाए से, उता असा अपना चेक गिदे से, बैंक खुलवाए से खाता, भला असा मंडी गए से, उता बकरियां गिदियां से, भला बकरियां मेरिया 4 थईयां, उता भला मैं एक वेला लेला वेचाए मैं 12,000 दा, भला 3 मेरिया खड़ियां डू गबणाएं, असा अपने पैरों ते आप खड़े थी सकते से, असा अपने आपको कवर कर सकते से, असा आप ही। शुक्रिया। सर अब मैं चाहती हूँ कि आप अपने कीमती आरा से हमें मुस्तफीद करें, अपने ख्यालात शेयर करें हमारे साथ, और हमें गाइड करें सर।
ताकि हमें सीखने का मौका मिले। मैं आपसे क्या सीखूंगा? क्या आपका नाम फौजिया है? क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम फौजिया है। फौजिया, सर हमें सीखने का मौका मिलेगा आपसे। मैं आपसे क्या, आपको क्या सिखाऊंगा? आप मुझे सिखा रही हैं। ये बताएं फौजिया कि आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं? क्या करती हैं आप? सर मैं ये LSO जो है ना, इसमें काम करती हूँ, जैसे प्रोजेक्ट में। जी सर। नहीं, वैसे आप एज ए CRP सर। जब LSO या CRP नहीं बना जी सर, तो उससे पहले आप क्या करती थी? सर हाउस वाइफ हूँ, कि प्रोजेक्ट्स वगैरह में CRP भी काम करती हूँ, और LSO का जो ये इदारा है ये एज ए सदर। जी सर। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपकी जितनी समझ है, जो आपने काम किया है, जी सर, मेरे ख्याल से तो वो मेरे सारे यहाँ पर साथी भी मौजूद हैं, वो भी मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि शायद हम तो ये काम न कर पाते जो आपने किया। राशिद, सही कह रहा हूँ मैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब फौजिया ने तो कमाल कर दिया है, इसने अपनी पूरी। और फौजिया, जो आपने काम किया है ये तो नेकी तो है, लेकिन आपने तो पूरे अपने इलाके को उठा दिया है। जी सर। मेरे उस्ताद कहा करते थे कि ऐसे लोग मिल जाएं आपको, आपकी तंजीमों में, आपके LSO में, तो वो बिल्कुल हीरे हैं, हीरे की तरह चमकते हैं और चमका देते हैं। तो आप फौजिया बिल्कुल एक चमकता हुआ हीरा है, और मैं तो आपको मुबारकबाद देता हूँ जो आपने जितना काम किया है LSO के साथ। और मेरी एक सिर्फ शिकायत है इनसे, राशिद से भी और जवाद से भी और शिरानी से भी, कि इतना काम हो रहा है और किसी को पता ही नहीं। ये तो राशिद, दिस थिंग कैन, यानी ये जो इन्होंने किया है, ये तो लोग मेरे ख्याल से गुमान में भी नहीं है कि खवातीन ये कर सकती हैं। सही बात है। और मैं तो आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सब का ममनून हूँ, क्योंकि ये सब मुझे कहते हैं, हर दफा कहते हैं मेरे जितने साथी हैं, कि मैं एक टेप रिकॉर्डर हूँ जो टूट गया है, जो हर वक्त यही कहता है कि गांव के लोगों में गरीब से गरीब तरीन में बड़ी सलाहियत है और वो सब कुछ कर सकते हैं अगर उनकी कुछ मदद की जाए। आपने जो कुछ करके दिखाया वो मुझे सुरखरू किया है, और मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ये तमाम चीजें जो आपने की हैं वो आप करेंगी। मैं तो आपको मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू सर। और आई एम ग्लैड राशिद कि आपने रिकॉर्ड किया है। मुझे चाहता ये हूँ कि इसको अच्छी तरह हम लोगों को बताएं, हुकूमत को बताएं। जितने भी हुकूमत के प्रोग्राम हैं उसमें उनको ये पूरा एतबार या एतमाद नहीं है कि लोगों को शामिल करके काम किया जाए। अपनी तरफ से वो हर चीज देते हैं कि हाँ ये आपके लिए अच्छा है, ये आप करें। लेकिन NRSP ने जो किया वो ये था कि आपको शामिल किया कि आप किस तरह से जो करना चाहते हैं उसको करेंगे, और आपने ये करके दिखाया। तो मैं तो समझता हूँ कि आई डोंट नो राशिद या शिरानी, आपके इलाके में इस तरह के कितने LSOs होंगे जो उस किस्म का काम कर रहे हैं? हमारे राजनपुर में बहुत हैं LSO जो काम कर रही हैं सर। बताएं शिरानी, आपको कोई अंदाजा है? आपको पता था कि इन्होंने सब कुछ किया?
जी हमारे पास जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें ओवरऑल जो LSOs की तादाद है इन 7 डिस्ट्रिक्ट में, पहले मैं डिस्ट्रिक्ट का नाम बता दूं, डेरा गाजी खान है, राजनपुर है, लिया है, मुजफ्फरगढ़ है, बहावलपुर है, बहावल नगर है और एक बिहाड़ी है। इनमें कुछ में ये है कि हमारा बड़े स्केल के ऊपर काम रहा है, जैसे डेरा गाजी खान, राजनपुर, बहावलपुर, बहावल नगर में, और बाकी 3 डिस्ट्रिक्ट्स में पार्शली हम कुछ तहसीलों में। ओवरऑल LSOs तकरीबन कोई 180 के करीब है हमारी, और इसमें अगर मैं ये कहूँ कि जनाबली तकरीबन हमारी कोई 50% तंजीमात LSOs की ऐसी हैं जो फ़ाल तरीके से इस तरह का एक्टिव रोल प्ले कर रही हैं अपनी लोकल कम्युनिटी के साथ जहां उनको वसाइल मुयस्सर है। हाँ, ये और बात है सर कि कुछ जगहों पर CAF बहुत कामयाब हुआ, जैसे यहाँ की मिसाल आपके सामने है, इस खातून ने आपको बड़ा क्लियर सिर्फ के बारे में बताया, वेयर कुछ अदर एरियाज में शायद सिर्फ इतना कामयाबी से ना चला, उसकी भी मल्टीपल रीजंस है। ये बताया मुझे शिरानी के ये फौजिया जैसी कितनी खवातीन होंगी? फौजिया जैसी खवातीन अगर मैं गिनवाऊं तो राजनपुर में भी कम अज कम हमें 15 से 20 खवातीन मुयस्सर होंगी। मतलब असल में जो आपकी कामयाबी है वो फाजिया और उनके जो साथी हैं इस किस्म की खवातीन है, और अगर ये लोग हैं तो फिर ये काम जो है, और अगर आपके पास इतनी हैं तो आप बता रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो सब उन्होंने यही किया होगा। मैं तो राशिद एब्सोल्युटली डेज्ड, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ जो हुआ है, यानी और क्या इस मुल्क को चाहिए। और सर आपने ये भी गौर किया है कि जो राजनपुर है पंजाब का सबसे गरीब तरीन जिला है और उसकी सबसे ये रिमोट यूनियन काउंसिल है, और अगर वहाँ ये लोग और ख़ासकर ख़वातीन अपनी जो हालात हैं इसका उन्होंने ये फैसला किया है कि वो इसको खुद ठीक कर लेंगी, और जो कॉन्सेप्ट है कि हमारी सिर्फ एक थोड़ी सी मदद होगी, तो इससे अगर यहाँ हो सकता है तो फिर आप ये देख लीजिए कि ये तो पूरे पाकिस्तान में हर जगह हो सकता है। और वो जो आपका जो आप रिकॉर्डेड मुझे वो दें जी, क्योंकि बेसिक जरूरत तो ये है कि वो कहते हैं ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जी। अब ये जो आजकल कम से कम PTV और डॉन वाले और वो अल जजीरा वाले भी कल मेरे पास आए थे जी, ये सब इंटरेस्टेड है। मैं तो समझता हूँ कि पहले तो मैं उनको ये प्रेजेंटेशन जो है दिखाना चाहता हूँ, और उसके बाद क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम जा करके मिलना भी चाहते हैं, जरूर जाएं, और उसके बाद ताकि पाकिस्तान में नहीं बल्कि सारी दुनिया में इसकी शोहरत हो कि भाई पाकिस्तान की खवातीन जो हैं और वो क्या कर रही हैं, क्या कर सकती हैं। तो मैं तो किस तरह से इनका शुक्रिया अदा करूँ ये फौजिया और उनके साथियों का, क्योंकि आपने तो मेरा दिल बाग बाग कर दिया। वाकई जो जिस चीज पे मैं यकीन रखता हूँ वो चीज वाकई हो सकती है, और जाहिर है इसमें अगर राशिद ना होते या जवाद ना होते या शिरानी ना होते या और साथी जो हैं वो ना होते तो ये नहीं हो सकता था, लेकिन ये लोग तो हैं। और अगर इस तरह के जैसे आप हैं इस तरह के लोग मौजूद हैं तो मेरे ख्याल से तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इसमें एक चीज जो समझ आई जी सर, वो ये है कि जैसे अब जब हम इंडिया, शोएब साहब हमें बाकियां वास्ते में दस रहे तो अपनी LSO ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ कि पहला ਅਸੀਂ गम करते सा मर्दा ਦੇ ਨਾਲ सिर्फ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋएब साहब ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਖਵਾਤੀਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 55-60% ਹੁਣ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਉਹ ਵਾकई ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ। नहीं, मैं कह रहा था राशिद कि ये तो इनका जो प्रेजेंटेशन था वो इतना कंप्लीट, इतना उसमें इतनी सब चीजें थी कि एब्सोल्युटली मैं तो क्या सवाल करूं कि क्या नहीं किया आपने। आपने तो सब कुछ किया। सिर्फ आखिर में जो आपने कहा था ना फौजिया के सीआरपीज जो आपको हैं उनमें वो खुलूस और वो जज्बा नहीं जो आप चाहती हैं। असल में ये है, अगर आपके सीआरपीज में ये चीज होगी तब तो आपको मदद मिल सकेगी। अगर वो उनमें वो जज्बा नहीं है तो जाहिर है, जैसे मेरे उस्ताद जो थे अख्तर हमीद खान, वो कहते थे कि आप प्रोग्राम जो है उसको नहीं बढ़ाते बल्कि आप उन लोगों को जो काम कर सकते हैं उनको पैदा करते हैं। तो ये संगत, इसमें एक आध सवाल मैं करूँ जो मैं समझने की कोशिश कर रहा था। एक तो ये शुरू में जो फाजिया ने प्रेजेंटेशन दिया ये खाली एलएसओ संगत का था ना? जी सर, संगत का। इसमें डाटा जो दे रही थी तो इसमें बताया था कि यहाँ पर पूरे राजनपुर का डेटा दे रही थी, जब ये बता रही थी कि यहाँ पर जो है वो कहा था कि 7 एलएसओज हैं, यहाँ 5 एलएसओज हैं। ये कहाँ का बता रही थी, कहाँ के एलएसओज हैं? 5 सीआरपी हैं सर। अच्छा, 5 सीआरपी, 8 मौजे हैं, 8 मौजे। ओके, 8 मौजों में 5 सीआरपी काम कर। नहीं, वो सवाल ये कर रहे हैं आपसे फौजिया कि ये सिर्फ जो आपने जो अभी जो सारी कार्रवाई बताई है सिर्फ अपनी एलएसओ की बताई है ना? जी जी, अपनी एलएसओ की बताई है, सिर्फ अपनी एलएसओ यूसीसी वाला की बताई है। जिसमें आप कह रहे हैं 23 वीओज हैं और 371 सीओज हैं। जी 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 सर, 23 वीओ हैं। थोड़ा सा वो मेरे ख्याल से सीआरपी से कंफ्यूजन हो गया जी। तो इसमें ये बताइए फौजिया के जो आपने स्कोर कार्ड दिया था पावर्टी का, तो उसमें आपने बताया था कि जो आपकी तकरीबन 6000 कुछ जो हाउस होल्ड हैं जी, उसमें 689 जो थे वो बहुत गरीब हैं, मतलब 0 to 11 तक। जी सर, ये बहुत गरीब है। तो इनमें से सब मुनज़्ज़म हो गए हैं या अभी कुछ मुनज़्ज़म नहीं हुए? कुछ है, कुछ इसमें नहीं है, बाकी सारे हो गए हैं। जो कुछ नहीं हुए हैं वो उसकी वजह आपको कुछ पता चली, क्या वजह है? जी सर, उसमें जो कुछ इलाके हैं जो दरिया में आ गए हैं तो उन तक हमारी रसाई नहीं हो सकती, कुछ दरिया के पार हैं। तो पहले जो हमारे पास डेटा था, जैसे यूनियन काउंसिल, पहले तो 1 यूनियन काउंसिल थी, अब तो 2 है। तो इसमें जो हमारे पास पहले डेटा था उन सारे इलाकों को हमने कवर किया है। हाँ, आपकी यूनियन काउंसिल बहुत बड़ी लगती है क्योंकि अमूमन तो जो पाकिस्तान की जितनी 5885 जो यूनियन काउंसिल्स हैं तो जी सर, अब 2 में तकसीम कर दी है। औसतन 3000 3,500 हैं घराने, आपके यहाँ 6000 से ज्यादा हैं घराने।
हाँ सर, वो भी उन्होंने कह रही है कि लेटली उसको 2 में डिवाइड कर दिया इन्होंने। अच्छा, कर दिया है, लेकिन संगत के पास तो दोनों है ना। ये अभी तो वो पुरानी चल रही ना। जी जी, संगत के पास दोनों है। तो मतलब देखे ना, इसका जो फलसफा था एनआरएसपी को बनाने का, आपने कभी सोचा कि एनआरएसपी को भी हुकूमत ने बनाया, तो हुकूमत के जहां इतने बहुत सारे इदारे मौजूद थे, वहां क्या जरूरत थी कि एक और इदारा बना दिया जाए एनआरएसपी? तो पहली वजह ये थी उसकी कि बाकी हुकूमत के जो इदारे हैं उनकी घर घर तक पहुंच नहीं है। जी सर। मतलब उनका तरीक़ाकार ऐसा है, उनको बनाया इस तरह गया है, उनके प्रोग्राम ऐसे हैं कि प्रोग्राम है तो सबके लिए, लेकिन उनकी पहुंच नहीं है घर घर। तो ये जो आपको हम कहते हैं कि सीओ बनाए, तो इसीलिए बनाते हैं, इसीलिए कि हम ये इदारा जो है एनआरएसपी वो घर घर पहुंचे, न सिर्फ जो कुछ कर सकता है वो खुद करे, बल्कि ये जो हुकूमत के इदारे हैं इनके लिए ये आसानी पैदा करे कि वो आपके साथ ताल्लुक रखें और जो कुछ वो करना चाहते हैं वो आपके जरिए करें। और आपने दिखाया भी कि बहुत सारे आपका ताल्लुक हुआ है पैदा। लेकिन आपका क्या तजुर्बा क्या है, हुकूमत के इदारे आपके साथ ताउन करने के लिए, या आपकी जो, क्योंकि उनके पास, हुकूमत के पास क्या है, हुकूमत के पास तो यही है कि जो कुछ वो करना चाहते हैं वो आपके लिए करेंगे। जी सर, ताउन करते हैं हमारे साथ। जी सर। मतलब देख तो रहा हूँ मैं कि ताउन है उनका, लेकिन जितना आप ताउन चाहती हैं उतना ताउन है या कम है उससे या ज्यादा है? सर नादरा के जो है वहाँ पे थोड़ा कम हमारे साथ ताउन होता है, नहीं होता। नादरा बेस पे जो है ना वहाँ पे। अच्छा, नादरा वाले जरा, फिर भी आपने काफी काम तो करवाया है। नादरा के जो बेस पे इदारा है वहाँ पे हमारे साथ नहीं होती ताउन ज्यादा। क्यों? उनको तो बहुत फायदा पहुंच सकता है अगर आपके साथ काम करें। ये वो मेरे ख्याल वो बिस्प की बात कर रहे हैं सर, बीआईएसपी की। बीआईएसपी वालों का क्यों तावन नहीं है? दफ्तर एक है इसलिए वहाँ पे ज्यादा मसाइल होते हैं, तादाद ज्यादा हो जाती है, इसलिए वहाँ पे ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती खवातीन जो जाती हैं। अमला बहुत कम होता है वहाँ पे। नहीं, लेकिन बिस्प के लिए आप क्या कर सकती हैं अगर वो आपके साथ काम करना चाहें? देखिए ना, बिस्प क्या काम कर रहा है। सबसे पहले तो उनका वही है कि वो पैसे देना चाहते हैं। पहले महीने में देते थे, अब कहते हैं 3 महीने में देंगे। और अब ये कोविड का जो जमाना आया तो वहां पर उन्होंने एकमुश्त को देना शुरू किया। तो उसमें आपकी तो मदद अगर वो लेते तो उनको बड़ी आसानी से ये सब कुछ हो सकता था। आपने दिखाया तो एक जगह कि आपने 800 घराने जो हैं उनको बीआईएसपी के साथ शामिल कराया। जी जी, लेकिन मजीद भी बहुत ज्यादा हमें जरूरत है इसकी। मतलब क्या आप बताएं ना, क्या चीज आप चाहते हैं कि वो करें जो आपके साथ नहीं कर रहे? जी सर, ये जो आया था ना सर कोविड में, वो जो एहसास सपोर्ट प्रोग्राम था, उसको ये कह रहे हैं कि दे शुड एक्सपैंड इट फर्दर। सारा कुछ सर बेस प्रोग्राम दे तहत थींदे सारा कुछ
مطلب CO VO بڑھن سکور کن بغیر بھی غریب عورتیں ہیں جے کوئی امداد نہیں مل سکتی والا. اچھا آپ جو بات کر رہی ہیں نا وہی میں ان کو کچھ جن بیسک کارڈ نام بھی شامل ہے موجود ہے لیکن انہیں عورتوں کو بیسک کارڈ. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں تو میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ پیسے جو آپ دے رہے ہیں جی جی خیر جو پہلے شروع میں کووڈ سے پہلے جو پیسے دے رہے تھے نا پہلے وہ کوئی 1000 روپے سے شروع ہوا تھا اس کو تو 10 سال ہو گئے اب 11 سال ہو گئے PISP کو پیسے دیتے. اس میں جی سر اس میں بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے کہ اب مسئلہ آیا ہے عمرہ کر کے آئے ہیں ان کو پیسے نہیں مل رہے ہیں کیونکہ کسی طریقے سے ان لوگوں نے عمرہ کر لیا لیکن ایک خاتون ہے وہ بیوہ ہے اور عمرہ کرنے کی وجہ سے اسے وہ پیسے نہیں مل رہے اور اس کا بیسٹ سکور بھی ہے. بہت سارے ایسے گھرانے جو کہ رہ گئے ہیں جن کو ضرورت ہے ان کا ان میں نام رجسٹر نہیں ہو رہا. یہ مسائل اس میں ہوتے ہیں. ہمیں نہیں میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں ان سے کہہ رہا ہوں اگر سنیں یا نہ سنیں میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے آپ نے بنائی ہے نا CO بنائی ہے اب آپ کی جو COs ہیں جی آپ کے جو 4000 کچھ آپ نے گھرانے جو بنائے ہیں اس میں BISP والے جو ہیں وہ بھی تو 0 to 16.5 کتنے لوگوں کو یہ 0 سے لے کر 23 ہے نا تو آپ کیا ان کے کیا پرسنٹیج ہے یعنی جو آپ کے پاس ہیں گھرانے ان میں BISP انٹائٹل جو ہیں یعنی ان کی نمبرنگ ہے جو 16.5 یا جو بھی ہوتی ہے جی اس کی کیا اس کی پرسنٹیج کیا ہوگی تمام گھرانے نہیں یعنی وہ یہ پوچھ رہے ہیں سوال پوچھ رہے ہیں فوزیہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کتنی اوسط ہوگی ایسی خواتین کی جو BISP اتنی غریب ہیں کہ وہ BISP سے ان کو مدد ملنی چاہیے اور نہیں مل رہی کیا فیصد ہوگا؟ بہت زیادہ ہے ایسی ہے خواتین جن کو ضرورت ہے اس میں تقریباً میں راشد یہ پوچھ رہا ہوں 30% ہوں گی 30% سر نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جن کو وہ دے رہے ہیں BISP جن کو دے رہے ہیں ان میں سے کتنے اور سطن آپ کے ساتھ کتنے آرگنائزڈ ہیں لوگ 4000 گھرانے ابھی تک جتنوں کو نہیں جتنے لوگوں کو BISP سے مدد مل رہی ہے وہ ساری کی ساری آپ کی ممبر ہیں یا نہیں ہے کوئی ایسی بھی ہے جو نہیں ہے ساری ممبر ہیں ہماری ساری کی ساری ممبر ہیں تنظیمات ان میں بنی ہوئی ہیں CO VO بنی ہوئی ہیں. واضح میری بات سنیں ذرا میں آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں. جی سر میں BISP سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ نے جو طریقہ پیسہ دینے کا کیا ہے جی اس کے بجائے آپ نے جو CIF کا طریقہ ہے اس میں آپ CIF کس طرح دیتی ہیں آپ جس لوگوں کو CIF دینا چاہتی ہیں ان سے ایک مائکرو انویسٹمنٹ پلان بناتی ہیں نا ایک ان سے کہتی ہیں کہ بتائیں آپ جی سر بناتے ہیں کیا کر سکتی ہیں جس سے کہ آپ کی آمدنی ہو اور کیوں نہیں کر پا رہی ہیں اور آپ یہی کہتی ہیں نا ان سے جی 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 سر کاروبار کا منصوبہ بناتے ہیں وہ اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتی ہیں نہیں کاروبار کی تو بات چھوڑیں آپ جو بھی جتنی خواتین غریب ہیں وہ جو بھی کام کر رہی ہیں جی سر کچھ نہ کچھ تو کر ہی رہی ہیں نا جی جی گھرانے کا منصوبہ ہوتا ہے یہ گھرانا یہ پہلے منصوبہ بناتے جی اپنا گھر اپنی حالت بہتر کرنے کے لیے ان کے خیال میں وہ کیا کرنا چاہتی ہیں آپ CIF تو اسی بیسس پہ دیتی ہیں نا جب وہ بتاتی ہیں کہ ہاں ہم یہ اگر آپ ہمیں یہ دے دیں اتنے پیسے
तो हम ये करेंगे और वापस भी कर देंगे आपको, ये इस उम्मीद में कि फिर आप दोबारा भी उनको देंगे CIF। यही है ना? जी सर, ऐसे ही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर उनको ये कहा जाए BISP को, क्योंकि BISP तो पैसे दे देते हैं जो उन्होंने फैसला किया है कि इतने पैसे दो, आपसे नहीं पूछते कि भाई आपको कितने पैसों की जरूरत है कि आप इतने पैसे कमाने लगे हर महीने। जी। अगर वो इस बात पे तैयार हो जाएं, ठीक है। देखिए साल में अब आजकल BISP के जो लोग हैं, BISP के बेनिफिशियरी, उनको 24,000 रुपए वो देते हैं। जी। पहले 2,000 रुपए महीना देते थे, अब फिर उसके बाद उन्होंने 6,000 रुपए हर तीसरे महीने में शायद देने शुरू किए हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि बजाय इस तरह से आप थोड़े थोड़े पैसे दे रहे हैं, इसके बजाय अगर आप उनसे पूछें लोगों से, सर इकट्ठे दे तो वो ठीक है। खास तौर से जो आपके मुनज़्ज़म घराने हैं, उनसे ये बात हो सकती है। जैसे आपने जी सर, पूरे CO का एक वो बनाते हैं ना मंसूबा, कि हर घर का इस तरह से मंसूबा उनको बना के दिया जाए कि हमको इतने पैसे अगर दिए जाएं यकमुश्त, तो फिर हम पैसे कुछ कमा सकेंगे हर महीने। जी जी। आपके ख्याल में ये मुमकिन है? यानी बजाय इसके कि वो 24,000 रुपए जो साल को आपको देती हैं, वो 6,000 के तौर पे दें। अगर वो इस बात पर तैयार हो जाए कि नहीं ठीक है, आपको 15,000, 20,000 रुपए, 25,000 रुपए अगर जरूरत है तो यकमुश्त ले लें साल भर के लिए, उसके बाद साल भर के लिए फिर आपको वो दे दें 25,000 रुपए जो वो देते हैं। जी सर, इससे ये कायल हम लोग कर सकते अपने CO जो ये पैसे लेते हैं, अगर उनको इकट्ठे ये दे दिए जाएं तो इससे वो अपना कारोबार भी खोल सकती हैं। ये तो जब थोड़े थोड़े देते हैं। जी 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 सर। लेकिन अगर उनसे मैं ये कहूँ तो आप लोग तैयार होंगे? क्योंकि वो कहेंगे लोग नहीं तैयार। जी सर, क्यों नहीं सर। जी इंशाल्लाह। जी सर। कायल नहीं, देखिए ना, अब ये BISP को 11 साल हो गए हैं। जी सर, यहाँ पे एक खातून बैठी है, इसके ऊपर बात करना चाहती हैं। हाँ मिलाओ उसको। सर शुएब साहब दा सवाल ये है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले तो आपको पैसे देंदे, ठीक है, पहले ई देंदे हन कि जेरा पैसे गिनदे 2,000 रुपया, हुण ओ तो आपको हर 3 महीने बाद कोई औरत है ई वक्त इतना मौजूद बैठी है जेरी बेनजीर दे पैसे गिनदी पई है, केरी बैठी है सारियां ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ थी गए। इशा गाल थींदी पई है कि कुछ ऐसियां औरतें हैं जिन्हें दे पैसे बंद थी गए, ओ बेनजीर वाले को पुछण वेंदे, उन्हें को बेनजीर वाले रहनुमाई नहीं करेंदे। अच्छा, तुम्हारी जो केरी खातून है जेरी पैसे गिनदी पई है, हुण ई वक्त भी तुसा गिनदे वे तो आपको पहले कितनी पैसे मिलदे हैं, हुण कितनी पैसे मिलदे हैं, हुण कितनी मिलदे ना जेरी तुम्हारी एहसास प्रोग्राम वाली ना हुण 2,000 वाली कितनी थी गई है। अच्छा, हुण सवाल ये है कि तुआको हुण मिलदे 2,000 मिलदी है, 3 महीने बाद मिलदी है, 3 महीने बाद 9,000। हुण अगर तुसाडी क्या सलाह है, तुआडी सलाह घिंदे पैसे तुआडे कोलों गाल करेंदे पैसे, फैसला तुआडा होसी तुआडी सलाह दे मुताबिक। अगर फौजिया तुआडी LSO दी सदर जरी वक्त बैठी है थई, गाल ये है कि तुआको ओ देवन 6,000 या तुआको देन 2,000, घरे च आंदन पैसे 2,000 6,000 ले मिट्टी थी वेंदी है, घर दे खर्चे विच ये रोटी टुकर लूण थींदे। अगर तुआको ये पैसे बेसपा लेंदे नाल गाल कीती वंजे, LSO वन के गाल करे या LSO ते दी गाल नहीं कर सकदा, ये वड्डी गाल है। शुएब साहब वन के गाल करें कि ये पैसे इन्हें को किस्तें विच थोड़ा करके देवण दी बजाय कट्ठे कर दिता वंजे, ताकि जिवें तुसा कर्जा चाहंदे वे हुंदे विच मजीद हिकी निगी तुहाडा पैसा रल वंजे, तुसा जे रहना थोड़ा कारोबार करेंदे पवे उनको वधा छोड़ो, ओ तो आपको थोड़े पैसे मिलन दी बजाय हिकी निगी तुहाडे पैसे दे देवन। मेरी गाल सुनो, ओ ठीक है
जेरा तो को थोड़ा करके देंदे पैन या हिकी निंगी वाला पैसा मिलण तोड़े वास्ते ठीक है हिकी तुसा देखो ई वक्त साडी देखो साडी तम इमरान सर आपने उनको इग्नाइट कर दिया बिल्कुल। तुम बताओ ना क्या कह रही है। तो वो तो सारे वो यही कह रही है कि अगर उनको आप एक दे दे पर ईयर तो वो तो बड़ी खुश है मेरे। जी फौजिया क्या कह रही है सारी? जी सर, ये कह रही है कि जैसे कि थोड़े थोड़े करके ये इनको पैसे देते हैं, उससे तो वो खर्च हो जाते हैं। जैसे हमारा CIF का कर्जा है, ये उठाती हैं, अगर उसके साथ ये जो सारे इकट्ठे करके ये सारे एक साथ दे दी जाए इनको, तो ये अपना कारोबार खोल सकती हैं। जैसे छोटी सतह पे कारोबार अपने घर में आमदनी में इजाफा करती है, इससे जब ये यकमुश्त इनको सारे पैसे मिल जाएंगे तो इससे ये बड़ा कारोबार खोल सकती हैं। अच्छा आप ये बताएं फौजिया। हाँ जी, कोई बकरियां ले सकती है सर, कोई गाय ले सकती है, कोई अपनी दुकान घर में छोटी मोटी कर सकती है। मेरी बात सुने फौजिया। जी सर। प्रोग्राम करने के लिए अगर उनसे मैं बात करूं तो वो मुझसे सवाल करेंगे ना। सवाल ये कि जैसे आपके पास जो है BISP बेनिफिशरीज कितने होंगे आपके इस LSO में जिनको के BISP पैसे दे रही है? 4,000 घराने हैं। 4,000। अब 4,000 घरानों को वो एक साल में अब जैसे जो कह रहे हैं वो 24,000 रुपए फी घराना देते हैं, लेकिन वो 3-3 महीने बाद या 4-4 महीने बाद मिलता है पैसा। जी जी सर। अब अगर उनको उनसे कहा जाए कि आप इनको यकमुश्त दे दें, जी, तो अब यकमुश्त देने के लिए वो आपको मालूम है ना कि बजट जो बनता है जिस तरह होता है, तो उनका जो 3 महीने का बजट होता है जिसमें वो पैसे देते हैं आपको, वो तो 4,000 में से सिर्फ पहली दफा तकरीबन 1300-1400 घरानों को मिलेगा। अगर वो 24,000 रुपए एक मुश्त देते हैं आपको, उसके बाद 3 महीने के बाद फिर और 1400 का नंबर आएगा, उनको मिलेगा। उसके बाद 3 महीने के बाद फिर और जो बाकी है उनका नंबर आएगा। तो मैं समझ ये जो साल में उनको, अब इसके लिए लोग तैयार होंगे। जी सर, इसके बगैर तो तैयार होंगे। जी सर, इसमें हो जाएंगे तैयार। जी, मेन चीज यही है कि वो ये कहेंगे कि जी हमें तो बजट मिलता है, वो तो हम इस तरह दे सकते हैं, इस तरह नहीं दे सकते। इस बात पर जरा गौर करें आप लोग। मेरे ख्याल से शिरानी जरा आप ये इस पर कुछ मुझे लोगों के व्यूज लेके दें कि BISP से अगर बात की भी जाए तो फिर वो कहें कि जनाब लोग तैयारी नहीं होंगे, तो कम से कम हमारे पास कुछ डेटा हो। हाँ शिरानी क्या कह रहे हैं? जी सर, इसमें जो आप फरमा रहे हैं ये एग्जैक्ट हमने ये एक एक्सरसाइज की आज से कुछ साल पहले बहावलपुर की एक LSO के साथ इसी तरह के एक बड़े फोरम में, और उन्होंने यही कहा कि नबी अगर आपको करंट जो मंथली या क्वार्टरली मिलता है इसके बजाय ये यकमुश्त मिल जाए या 6 महीने का मिल जाए। जो बहावलपुर का एक्सपीरियंस था एक LSO का, वो ये कहते थे 50% से ज्यादा लोगों की ओपिनियन ये थी कि जी बिल्कुल हम इस पर एग्री करते हैं, प्रोवाइडेड कि इसमें ये हमें डायरेक्ट पैसा जो है वो हमारे अकाउंट या हमारे पास पूरे का पूरा पैसा मिले। दरमियान में कटौतियां जो हो जाती हैं, जैसे वो बैठे हुए होते हैं, वेंडर बैठे हुए होते हैं, बाज़ औक़ात उनके जरिए उनको पैसा मिलता है छोटे जगहों पर, क्योंकि आउटलेट बड़े लिमिटेड से हैं। देखो BISP का अब तो बिल्कुल डायरेक्ट वो है, बीच में तो कुछ नहीं है, तो उन्होंने डिजिटाइज किया हुआ है, तो वो तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मतलब ये अब ये अगर 11 साल से प्रोग्राम चल रहा है तो कम से कम, जैसे वो कहते हैं कि अब वो 5 मिलियन को दे रहे हैं, तो 5 मिलियन में कम से कम 2-3 मिलियन तो ऐसे होंगे, 4 मिलियन जो कि
5 साल से ज्यादा उनको पैसे मिल रहे हैं, ताकि कम से कम उनको ये पता चले कि ये चीज जो है ये और ज्यादा नहीं चलेगी आगे। जी सर, ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं जी। एग्जैक्ट हमने एक एक्सरसाइज की हुई है, इसमें हमारा जो रिजल्ट था अगरचे वो 1.5 साल पुराना, उसमें मोर देन 50% बेनिफिशियरी जो थे वो विलिंग थे। और आपकी बात बिल्कुल बजा है कि 5 साल से भी ज्यादा लोगों को ये स्टाइपेंड मिल रहा है। और ये भी उनके साथ उस डायलॉग में क्या गया था कि मे बी एक दफा मिलने के बाद वो दूसरी दफा की टर्न आती है या नहीं आती। लेकिन जो आपने अभी इनको आइडिया दिया है कि नवली के जरूरी नहीं है कि ये 4000 लेट्स अज्यूम कि अगर बेनिफिशरीज हैं तो उनको एट ए टाइम नहीं मिलेगा, बल्कि वो क्वार्टर वाइज बेफरकेट हो जाएंगे। ये मुमकिन है सर, पायलट के तौर पर ये मुख्तलिफ जगहों पर किया जा सकता है। वो फैसला खुद ही कर ले, मतलब यानी या तो यानी चाहे वो ये चाहे कि जो गरीब हैं, सबसे गरीब है उनको पहले दे दिया जाए, उसके बाद जो थोड़े कम है उनको दिया जाए उसके बाद। लेकिन ये कि अगर इसका थोड़ा सा डेटा मिल जाए कि लोगों का क्या ख्याल है, क्योंकि अब तो पैसे काफी होने लगे ना, 24,000 देने लगे। पहले तो वो सिर्फ 12,000 था, फिर वो 18,000 हुए, अब 24,000 हो गए। तो अगर 24,000 यकमुश्त मिलेंगे तो जैसे वो कह रही हैं फौजिया कि लोग कुछ कारोबार कर सकेंगे। CIF में आपने देख लिया, आपने फौजिया देखा है जिन लोगों ने CIF लिया, और CIF तो ये है कि वो तो वापस करना पड़ता है, ये तो फिर आपको वापस भी नहीं करना पड़ेगा साल के बाद। वो तो साल के बाद और उतना ही मिल जाएगा, 2-3 साल आपको इतना मिलेगा, तो उसके बाद फिर आपको यानी वो BISP के जो पैसे मिलते हैं उसके उससे ज्यादा आप पैसे कमाने लगेंगे। सर तो, कोई ऐसे घराने भी हैं जिनको नहीं मिलते ना इनके अंदर, वो भी तो है ना जिनके मिलते बुलाए तो वो कट गए। अभी तो देखे ना आप, पहले अभी तो सवाल उन लोगों का है जिनको मिल रहे हैं उनकी हालत कैसे बेहतर की जाए, क्योंकि अगर उनको बेहतर हो गई 2-3 साल में कि वो इससे ज्यादा पैसे कमाने लगे, तब तो जिनको नहीं मिल रहा है उनके लिए वो तैयार होंगे देने को। अभी तो फिलहाल वो यही कहते हैं जो हमारे पास पैसे हैं अभी उस पर यही मिल रहा है, और जिनको नहीं मिल रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मकसद मेरा ये है कि बजाय इसके कि वो इंफरादी तौर के ऊपर लोगों को पैसे दें, वो तंजीमें हैं उनको बना करके दें, जैसे आपकी तंजीम है। ये मैं कह रहा हूँ। और ऐसा कर लेते हैं, एक सिर्फ कमेंट सर इसमें हम ऐसा कर लेते हैं कि राजनपुर के जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें जो हमारी LSOs हैं उनके साथ एक डायलॉग करके और उनकी जो ओपिनियन है और वो जो नंबर है वो शेयर कर देंगे आपको, क्योंकि राजनपुर में जरा वाइब्रेंट किस्म के LSOs भी हैं और यहाँ पर हमारी जो मुताबिक फील्ड टीम है वो बड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व भी है, और यहाँ पर इस प्रैक्टिस को ज्यादा बेहतर तरीके से हम मेरे ख्याल में लोगों के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। उनकी ओपिनियन और आप दोनों डेटा दे दें, अगर आपके पास 100% जो आपके ख्याल में लोग इंटाइटल्ड हैं, अब वो तो उन्होंने तो अब एक NSCR भी किया है ना, वो कह रही हैं अभी पिछली दफा उनका वो था कि आप क्या हो रहा है ये NSCR नेशनल इकोनॉमिक रजिस्ट्री। जी सर हो रहा है, तो हो गया है कंप्लीट, अभी ये नहीं हुआ, हो रहा है अभी। अच्छा, कुछ जगहों पर हो गया है, कुछ जगहों पर अभी तक चल रहा है। फिर गाजी खान डिस्ट्रिक्ट में जैसे चल रहा है, राजनपुर के भी कुछ तहसीलों में चल रहा है, कुछ में हो गया है। बहावलपुर में साल पहले इन्होंने शुरू किया था, फिर दरमियान में छोड़ दिया था। वही है ना, एक तो ये है, दूसरे ये कि अब जैसे इनके अलग अलग प्रोग्राम हैं, अब वसीला तालीम है, अब अगर ये वाइस कतरा प्रोग्राम शुरू करें तो उसमें वसीला तालीम भी कवर हो जाता है। क्यों राशिद, क्या ख्याल है तुम्हारा? नहीं बिल्कुल सर, वो दोनों इसमें इकट्ठे हो जाएंगे, दोनों हो जाते हैं। एनीवे, मैं तो सिर्फ ये राय आपसे पूछ रहा था, लेकिन ये कि फिलहाल तो जो आप कर रही हैं, आपकी जो LSO ने किया है, मेरी समझ में तो नहीं आता कि मैं इसमें आपके लिए और क्या बेहतरी ला सकता हूँ। आपने तो सब कुछ कर लिया जो कुछ करना था, तो बस इसको कायम और दायम रखें
یہی سب سے بڑی بات ہوگی. وہ کوشش یہ کروں گا اگر یہ ریکارڈنگ مجھے بھیج دیں آپ شیرانی, تو میں پھر یہ کم از کم اس کی پبلسٹی کے لیے ان کو دکھاؤں گا جو انٹرسٹڈ ہیں, ٹی وی چینلز ہیں, اخبار والے ہیں, کہ جناب دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے. تو شاید اس سے گورنمنٹ کے اوپر بھی کوئی اثر ہو تھوڑا سا. کیا خیال ہے راشد؟ آواز نہیں آ رہی تمہاری. جی میں نے وہ ایبسلیوٹلی یہی آئیڈیا تھا سر کہ اس کو کہ اس کی ریکارڈنگ اس کو ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح سارے جو میٹنگز ہوں گی فیوچر کی بھی ان کو ہم ریکارڈ کرتے جائیں. ریکارڈ کریں, بالکل بہت ضروری ہے. اور ایک یہ تو آٹومیٹیکلی ایک ڈاکیومنٹری بنتی جا رہی ہے نا ایل ایس اوز کی. And it will be so powerful documentary, you know. Absolutely. ہاں جی. Nobody else is talking. Fawzia is talking. Fawzia اور باقی جو ممبران ہیں ان کے پریزیڈنٹ ہے, وائس پریزیڈنٹ ہے, سی آر پیز ہیں, ممبران ہیں, ان کی باتیں ہیں سب. بالکل. نو بہت بہت شکریہ آپ سب کا, فوزیہ آپ کے ایل ایس او کا, آپ کے ممبران کا جو آئے, آپ نے دل خوش کر دیا میرا. تھینک یو سر جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ سب کا, خاص کر فوزیہ آپ کا اور آپ کی ساری جو تنظیمات ہیں ان سب کا. اور آپ سب کو مبارک ہو, آپ نے بہت اچھا کام کیا. بلکہ آپ تو شاید مطلب جو ہے نا ہماری امید سے زیادہ کیا. ہاں, much beyond our expectations. تو یہ شیرانی, تم کہاں کے شیرانی کہاں سے ہو تم؟ میں ویسے تو مطلب میرا غازی خان کا ہی رہنے والا ہوں, اور میرے فور فادرز جو ہیں وہ مائگریٹڈ ہیں فرام بلوچستان زوب کے ڈسٹرکٹ سے, لیکن اوور 100 years ago. یعنی تو شیراز سے مائگریٹ کیا ہوگا؟ نہیں سر, میرانی زوب کا ایک سب تحصیل ہے, وہاں سے اوریجن ہے. Anyway, congratulations. سر اپنی جو ان کی جو ڈی پی او صاحبہ ہے, ذرا آپ اپنے کیمرے کے سامنے آؤ نا ذرا. ڈی پی او کہاں ہے؟ وہ تو آواز ہی آئی تھی ان کی. کدھر ہو بھائی؟ جی سر, سینا آ جائے سامنے ذرا. سامنے آ گئے. سینا ذرا سامنے آؤ نا. یہ اپنا اس کو حسینہ تمہیں کتنے سال ہو گئے انڈسٹری میں؟ سر مجھے میں 19 فروری 2020 کو آئی تھی. 19 فروری 2000 کو سر. 20 سال. جی سر, 19 فروری 2000 مجھے سر 20 سال ہو گئے ہیں سر, 20 سال ہو گئے ہیں سر. تو حسینہ جو ہے سر یہ اب یہ مینجمنٹ میں آئے گی ادھر, سی از دی ڈسٹرکٹ ہیڈ. ماشاءاللہ. اچھا, بہت بہت زبردست کام کیا ہے نے, اور ماشاءاللہ she has dedicated her life to the program. مہربانی سر, بہت شکریہ. تمہارے پاس کتنے ایل ایس اوز ہیں تمہارے پاس؟ سر ڈسٹرکٹ راجن پور میں اس وقت ہمارے پاس سر 25 ایل ایس اوز ہیں. ٹوٹل یونین کونسل 44 ہیں سر, اس میں سے 25 ہیں. اور سر اللہ کا شکر ہے, آپ کو تھوڑا سا بتانا ضرور چاہیں گی, ان 25 میں 15 ایل ایس اوز میں سیم یہی سر, اس سے زیادہ, اس کے برابر, اسی کے ایکول سر, اتنی ہی پروگریس, پرفارمنس, جذبہ, ہمت, لگن, پارٹیسپیشن آپ کو نظر آئے گی سر. بہت اچھا. بس تم سب سے ملواؤ نا, سب کا ریکارڈ کریں راشد جی. وہ آپ ایسے ہی کریں گے سر. میں تو اب فارغ ہوں بالکل, میں تو روز تم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں. انشاءاللہ ہفتے میں چلو زیادہ ہو جائے گا اگر تم لوگوں کے لیے. بہرحال بہت بہت مبارک ہو تمہیں. بہت مہربانی سر. بہت اچھا. تھینک یو ویری مچ سر. تو حسینہ, تو فوزیہ, اس کے بعد حسینہ, اس کے بعد شیرانی صاحب, جواد صاحب, ساری مینجمنٹ ٹیم, آپ سب کو بہت بہت شکریہ. اور آف کورس شہد صاحب کا, who have given us the time. Well, thank you very much, Rashid. It's all your leadership. But it's amazing. But only thing is, the only complaint I have against you is
that you don't give publicity to this work. That is true. आप इसको ज्यादा publicity दें. This is really amazing. ये तुम भेज दो मुझे ये रिकॉर्डिंग, मैं इनको दिखाता हूँ अखबार, टीवी वालों को देखो वो क्या, they would not believe कि ये हो सकता है. और वो भी इतना बैकवर्ड एरिया में, राजनपुर जिसका हमेशा नाम आता है तो लोग कहते हैं पता नहीं कितना बैकवर्ड इलाका है. आप सारे अपने कैमरास ऑन कर लें तो एक ग्रुप फोटो ले लें शुएब साहब के साथ. बहुत बहुत शुक्रिया सर. मंसूर ये वो वीडियो बना के शुएब साहब को भेज दें प्लीज. हाँ ये वीडियो आप मुझे भेज दें. जी सर. थैंक यू. अच्छा सर आप खुदा हाफिज़ जी. बहुत बहुत शुक्रिया.